was very close to actually making it to the World Cup squad as well. These days is an all-rounder. He's goals because कोई bowling नहीं करता ना. So that's another problem. But this team should address it because you see a lot of all-rounders. There is Shahbaz Ahmed, there is शिवम दुबे. अगर आप वहाँ पे और भी तिलक वर्मा को आप all-rounder के रूप में पाते हैं. Even Jaspreet Jaiswal bowls. He started bowling. You see Washington Sundar, he bats well. Jitesh Sharma and Prabh Simran Singh are not your just keepers. They are batters. So this is how the DNA of modern day cricket is developing. One single skill player बहुत दूर तक नहीं जाता है. अगर आप सिर्फ रिंकू सिंह की तरह बैटिंग करते हैं तो इनकी तरह छक्के मारिए और फिर फील्डिंग कीजिए एकदम गन फील्डर की तरीके से, सो दैट यू आर एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू द साइड. और ये तो खैर लड़का मुझे बहुत पसंद है. यशस्वी, नाम भी इसका यशस्वी है और नाम भी इसके सारे. On top of that, RK, this is a realization by the Indian management and the Indian selectors that the next set of players should also have this combination of right and left in the mix. I think that is the demand of international cricket. And I think going forward in all formats, I feel, things are changing rapidly. And I think India has woken up to that fact. And that is why you see so many of these upcoming left-handers in the mix. Shivam Dube there on the screen. I mean, Shivam Dube, I was just looking at his IPL numbers. I mean, when you look at his numbers, I don't think he's crossed 300 runs in any particular season, barring the one that happened recently. And that was at a strike rate of, Akash, at about 160. So, a man transformed with respect to the IPL and this format of the game. मैं तो एक्चुअली अगर 6-10 पे लोग जागे हुए हैं तो मैं 6-7 पे एक्चुअली सभा भाई ने कहा देखो इंडियन सेलेक्टर्स आर आल्सो लुकिंग एट लेफ्ट हैंडर्स. तो अगर आपने अपने बच्चे को क्रिकेट खिलानी है 6-7 साल का तो उसको लेफ्टी बना दो. तो द बेटर चांसेस ऑफ एक्चुअली यू प्लेइंग फॉर इंडिया एंड मेक multi not discipline but of course more arrows in your quiver where you can actually do more things. Shivam Dube ka, I think the rise of Dube with Chennai, they have this tendency to get the best out of people. और शिवम से मैं एक्चुअली बात भी कर रहा था उसके बाद. उसने कहा कि मैंने 25 रन बना के आया था और सबने कहा वेल डन यार. मैंने कहा 25 तो बनाए हैं. कहने बट दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम यू. इट्स T20 क्रिकेट राइट. वी डोंट वांट यू टू स्कोर 45. जो आपका काम था आपने वो काम किया एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड. सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फॉर्मेट. क्योंकि सबके रोल्स डिफाइंड होते हैं. दुबे का भी होगा डिफाइंड. द नंबर एट विच ही बैट्स इज लाइकली टू बैट टुडे फॉर एग्जांपल. यू आर मोर लाइकली टू फेल दैन सक्सीड. So it's important that you get the backing of the team and absolute clarity in thought that even if you fail, I'm not going to discard you. You are a part of my scheme of things, and that's what is required. Yeah, even during the course of the IPL, MS Dhoni did mention the fact that he's working on a few different things and it is reaping rewards, and he would want him to go there and perform in every opportunity that presents itself in front of him. Right, and on that note, it's time now to head into a very short commercial break. When we come back, the build-up continues not too far away from that first ball. India winning the toss and electing to bat.
I mean, important areas like the point area, Shivam Dubey is what you're looking at, I'm sure. Yeah, those delicate right. और 19वें एशियाई खेलों के तमाम अपडेट्स के साथ 10वें दिन हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं महावीर रावत और आज क्योंकि क्रिकेट का बहुत ही खास दिन है तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अजय मेहरा जी। अजय मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। महावीर, इससे पहले कि हम क्रिकेट पर जाएं, क्योंकि ये तमाम क्रिकेट सिर्फ एक हिस्सा है, एक खेल है जैसे कि बाकी खेल हैं या इन एशियाई खेलों के, तो भारत का जो मेडल का जो आंकड़ा है वो 60 तक कल पहुंच गया है और आज हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह के इवेंट्स हैं कि ये आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ से जब टीम का करीब 600-650 का कंटिंजेंट गया था तो एक नारा था कि अब की बार 100 के पार, तो 100 के पार जाने की एक बहुत बड़ी कवायद है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मेडल टैली की अगर हम बात करें भारत की, तो चौथे रैंक पर इस समय भारत मौजूद है और 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस समय 60 मेडल भारत के नाम है और चौथी रैंकिंग पर टीम इंडिया मौजूद है। हालांकि जो तीसरी रैंकिंग पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया की अगर हम बात करें वो 31 गोल्ड मेडल के साथ है, तो उसे कैचअप करने के लिए भारत के एथलीट्स को और ज़्यादा दमखम लगाना होगा। हालांकि कुछ इवेंट्स अगर हम बात करें मुक्केबाजी के या फिर रेसलिंग के या अगर और बैडमिंटन के, तो ये अभी होने बाकी हैं, तो जहां से हमें अच्छे खासे मेडल्स की उम्मीद है। ये अगर हम ओवरऑल मेडल टैली की बात करें तो चाइना 147 गोल्ड, 81 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 270 मेडल उसके हो गए हैं। लगता है चाइना अलग खेल रहा है, बाकी देश अलग चल रहे हैं। जापान नंबर 2 पर, साउथ कोरिया नंबर 3 पर, 31 का उसका आंकड़ा है। नंबर 2 और 3 के लिए भी जंग चल रही है जापान और साउथ कोरिया में। भारत नंबर 4 पर है 13 गोल्ड मेडल के साथ। चाइनीज ताइपे उसे टक्कर दे रहा है 12 गोल्ड मेडल के साथ। तो ये एक मेडल टैली है और आज एक बेहतरीन मौका है कि इस जो क्रिकेट के जरिए इस मेडल टैली को हम और भरोसा दिलाएं कि कम से कम एक गोल्ड इसमें और 7 तारीख को जब फाइनल मुकाबला होगा तो इसमें जुड़ जाए। लेकिन आज भारत का मुकाबला नेपाल से है। अब नेपाल ने कुछ दिनों पहले सुर्खियां बहुत बटोरी थी जब मंगोलिया को उन्होंने एक बहुत बहुत बड़े मार्जिन से हराया था और लगभग तमाम चीज़ों में एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन क्या आज जो एक बबल है नेपाल का वो टीम इंडिया बर्स्ट कर पाएगी अजय जी? देखिए, फेवरेट तो भारत ही है और अब बेशक आप जो मर्जी टीम खिला लीजिए। देखिए, एक ये टीम है जो एशियन गेम्स में गई है, एक भारत की जो फुल स्क्वाड है जो तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए, और एक रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी बनी हुई है जो अभी सौराष्ट्र के विरुद्ध खेल रही है ईरानी ट्रॉफी का मैच। तो आप ये देखिए क्या मतलब कितने खिलाड़ी हैं, पर ये टीम में भी अगर आप देखें काफी टैलेंट है। और हालांकि ये फुल स्ट्रेंथ पे है नेपाल। हमने उनको एशिया कप में देखा था, बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा। उनके पास कोई अच्छे बैटर्स हैं, माला की बात करें, कुशल माला की बात करें या रोहित पौडल जो उनके कप्तान हैं। पर अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम फिर भी अगर आप देखिए जो युवा क्षमता नजर आती है भारतीय टीम में, और खासकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक भी लगाया, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करी, वो कप्तानी कर रहे हैं इस टीम की। पर साथ में मुझे लगता है जो गेंदबाजी है ना, मुझे बहुत पुख्ता नजर आ रही है, क्योंकि मुकेश कुमार हैं, आप देखिए अर्शदीप हैं, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर जिनको हमने देखा था एशिया कप में भी अंतिम मुकाबला, हालांकि ज्यादा कुछ करने का मौका उनको मिला नहीं। फिर रवि बिश्नोई उनके पास हैं, शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं। बल्लेबाजी में भी आप देखें रिंकू सिंह, जायसवाल जैसे बल्लेबाज, खुद ऋतुराज गायकवाड़। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैन टू मैन भी देखें, बेशक नेपाल के पास उतना अनुभव नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पर ये युवा खिलाड़ी क्योंकि इंडिया ए के लिए काफी खेल चुके हैं, काफी उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन अच्छा किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस से उतरेगी। पर अब ये अहम मुकाबला है, क्रंच मुकाबला है, और कहते हैं ना डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि नॉकआउट स्टेज है और महावीर इससे बड़ा स्टेज क्या मिल सकता है। और जैसे आपने कहा निगाहें होंगी वो गोल्ड मेडल के ऊपर। जी बिल्कुल। और लेकिन कहीं ना कहीं जो नेपाल के फैंस हैं वो इस बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेंगे कि जब एशिया कप में नेपाल के खिलाफ भारत का मुकाबला था तो उनके बल्लेबाजों ने कुछ शुरुआती झटके लेने के बाद जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। टीम इंडिया ने शॉर्ट पिच से उनको टेस्ट करने की कोशिश की थी, वहां भी वो बेखौफ क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक अगर आप ब्रेव क्रिकेट खेलते हैं तो जितना छोटा ये फॉर्मेट होता जाता है, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में तो फासला साफ नजर आता है, वनडे में
थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और कम हो जाता है। T20 में फिर भी एनीवन्स गेम हो जाता है, और T10 तो फिर लॉटरी मानते हैं। तो जितना छोटा फॉर्मेट होता है, टीमों का गैप उतना कम होता जाता है। बहुत अच्छी बात कही महावीर, क्योंकि देखिए ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि जब जितना लंबा फॉर्मेट है ना, एक अच्छी टीम हमेशा वापस आ सकती है, और जितना छोटा फॉर्मेट होगा, कई बार ये 2-3 ओवर पूरा मुकाबले का रुख बदल देते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल उस कॉन्फिडेंस से उतरेगी। हमने उनको एशिया कप में देखा था, अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्कोर भी उन्हें बनाया था फुल स्ट्रेंथ भारतीय टीम के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होगा, और मैंने खुद वहां जाके इनकी जो लीग होती है वहां पे मैंने कवर करी, और काफी इनमें टैलेंट नजर आता है। ये लगातार खेल रहे हैं। संदीप लामिची ने, अगर आप देखें, उनके जो लेग स्पिनर हैं, उन्होंने आईपीएल भी खेला हुआ है, अच्छे गेंदबाज भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हल्के में लेंगे उनको या कंप्लेसेंट होंगे, क्योंकि ये टीम है कि आपको कहीं ना कहीं अपसेट कर सकती है। और वही यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण जो टीम के कोच हैं और मेंटोर भी हैं, टीम से जुड़े हुए, यही कह रहे होंगे खिलाड़ियों को कि अपना बेस्ट फुट आगे रखिए, क्योंकि ये T20 का खेल और कभी बहुत जल्दी बदल भी सकता है। जी बिल्कुल। और जो नाम जैसे कि आपने गिनाए हैं, तो नाम अगर हम बोलें, जितेश कुमार, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप, रवि बिश्नोई, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, ये तमाम वो नाम है जो इसमें से 90% तो इंडिया खेल चुके हैं। और जो 5-6 जो नाम है वो जो नहीं खेले, वो इंडिया कैंप्स बहुत बार अटेंड कर चुके हैं। तो एक बार हार्दिक पांड्या ने ये बात कही थी, और हालांकि उनकी थोड़ी फिर बाद में आलोचना भी हो गई थी, क्योंकि उस बयान देने के बाद ही हम वेस्टइंडीज से ही हार गए थे, हमारी मेन टीम। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी समय अगर भारत की 3 टीमें भी बन जाएं, बिल्कुल, तो वो तीनों टीमें वर्ल्ड क्लास रहेंगी। बिल्कुल। और ये जो नाम आपने लिए ना, मतलब अपने आप में देखिए ना कितना टैलेंट है। मतलब वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहे थे, तिलक वर्मा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनको आईपीएल में देखा कितने मुकाबले उन्होंने जिताए हैं, फिर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑलराउंडर्स का, शिवम दुबे हो, तिलक वर्मा हो, वॉशिंगटन सुंदर की आप बात करें, रवि बिश्नोई में लगता है एक और ऐसा टैलेंट है, ऐसे लेग स्पिनर हैं जो आप बहुत जल्दी देखेंगे भारतीय टीम में, जो कला उनके पास है। और जैसे उनका प्रदर्शन लगातार रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो राजस्थान के लिए कमाल का गेंदबाजी करते हैं। फिर आईपीएल में भी जो योगदान दिया है, तो मुझे लगता है वो जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है महावीर, ये जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है वो यहां पे काम आएगा। और नेपाल भी जानती है, देखिए फेवरेट्स अभी भी आप कहेंगे, बेशक जो मर्जी सेकंड या थर्ड टीम हो, भारतीय टीम हो, फेवरेट्स फिर भी आप भारत को ही कहेंगे। नेपाल अंडरडॉग्स है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये मुकाबला उनके लिए बड़ा है। और जैसे आपने कहा ना, कॉन्फिडेंस से उतरेंगे। सबसे तेज अर्धशतक अगर देखिए मंगोलिया के विरुद्ध सबसे तेज शतक लगाया है, तो कहीं ना कहीं बड़े रन बनाए। पीछे मंगोलिया की टीम वैसी नहीं है, भारत अपना पहला मैच खेल रही है एशियन गेम्स में, तो मुझे लगता है वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, रन आपके पीछे हो। और फिर इस ग्राउंड में अगर आप देखें, नेपाल मुकाबले खेल चुकी है, कंडीशंस को वो जानते हैं, सतह को थोड़ा बेहतर जानते हैं, यहाँ पे फील्डिंग भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और उन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी भी करी है। तो वो थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है किसी भी टीम के लिए। जी बिल्कुल। और वैसे ना भारतीय फैंस थोड़े से वो भी हैं अजय जी, कि यार इन्होंने युवराज सिंह ने वहां इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मार के रन बनाए, और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक गुस्से के साथ भी जो फैन का गुस्सा है, ये खिलाड़ियों की बात नहीं है। खैर, अब देखते हैं कि क्या वहां पर ताजा एक्शन चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। और जैसे ही वो पारी पहली पारी खत्म होगी, हम वापस आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल सीधे चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ, क्योंकि बार बार कह रहे हैं क्रिकेट की टूर्नामेंट नहीं है, ये एशियन गेम्स है। यहाँ पर बहुत सारा एक्शन चल रहा है लगातार सुबह से, और चलते हैं सीधे लाइव एक्शन की तरफ। शुद्ध पानी, पार्ले-जी, ड्रीमाने जीनियस, अमूल, ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। संदीप, number 10, 10号 Sumbar, number 33, 33号 Karan, number 25, 25号 Sandeep, number क्रिकेट 2, मैदान पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल number 8, भारत और नेपाल के बीच। Shankar, नेपाल यहां पर इस मैदानों पर 2 मैच खेल चुका है। अब नेपाल के खिलाड़ियों का परिचय करवाया जा रही है। विकेट कीपर आसिफ शेख आपके सामने स्क्रीन पर, Vivek, कुशल मल्ला। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत
को वॉकओवर मिला था। भारत सीधा क्वार्टर फाइनल में है। 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मिली है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश है। नेपाल आज भारत के साथ खेल रहा है। तो आज पहले क्वार्टर फाइनल में नेपाल ने क्वालिफाई किया भारत के खिलाफ खेलने के लिए। पाकिस्तान हांगकांग से खेलेगा, श्रीलंका अफगानिस्तान से खेलेगी। तो इस तरीके से ये जो क्वार्टर फाइनल सेट हुए हैं, इससे पता लगेगा कि क्या यहाँ पर आज जो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है, स्वर्ण पदक का जो टक्कर है यहाँ से शुरू हो जाएगी। मैं हूँ कुलविंदर सिंह कंग और मेरे साथ हैं प्रवीण सोनी। प्रवीण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। शुक्रिया कांग साहब। और बहुत ही बड़ा मुकाबला है, और अगर हम देखा जाए तो ये एशियन गेम्स हैं, और एशियन गेम्स में पदक तालिका में भारत को आगे बढ़ना है तो ये मैच जीतना होगा। और भारतीय टीम पहली बार आज एशियन गेम्स में क्रिकेट की टीम खेल रही है, और बहुत ही बढ़िया मौका है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। भारतीय टीम का ये परिचय होता हुआ, और आज पूरी उम्मीद है कि भारत नेपाल से जीतकर आगे बढ़ेगा और फिर अपनी दावेदारी पेश करेगा पदक तालिका। आपने बिल्कुल सही कहा, पदक तालिका में दावेदारी तो पेश करनी है। भारत पदक पोडियम फिनिश तो करेगा ही करेगा। भारतीय खिलाड़ी आपके स्क्रीन के ऊपर। आज भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत के जो प्लेइंग 11 है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, आर साई किशोर, रवि बिश्नोई, आविश खान और अर्शदीप सिंह। यह भारतीय टीम है और नेपाल ने अपनी टीम में कोई खास परिवर्तन नहीं किया। जो टीम उनकी खेली थी इस टूर्नामेंट में शुरुआती मैचेस में, आसिफ शेख विकेट कीपर, रोहित पौडेल जो कि टीम के कप्तान हैं, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी जिन्होंने कि एक नया कीर्तिमान बनाया, 10 गेंदों पर 52 रन बनाए, अर्धशतक का नया कीर्तिमान उनके नाम इस समय T20 में। सुंदीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, अविनाश बोहारा, The anthem of India. 奏印度国歌。Please be seated. 请坐。 खिलाड़ी की आंखों में आंसू है जब वो अपने देश के लिए खेलता है और ऐसा मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर खुशी के पल होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो आंसू हैं ये बात का दर्शाते हैं कि कितना बड़ा ये मौका है उन खिलाड़ी के लिए कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एशियन गेम्स में खेलना बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय खिलाड़ी आज काफी भावुक भी हुए और ये अच्छा लगता है देखकर कि एक खुशी के आंसू झलके हैं। और आज भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। ये है क्वार्टर फाइनल से इंडिया नेपाल के साथ खेलेगा, बांग्लादेश को मलेशिया के साथ खेलना होगा, पाकिस्तान को हांगकांग के साथ और श्रीलंका को अफगानिस्तान के साथ। की बड़ी
टीम की क्वार्टर फाइनल लाइनअप है और बड़ा अच्छा मैच होने वाले हैं। सबसे मुश्किल मुझे लगता है श्रीलंका और अफगानिस्तान में मैच में बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पूरी फुल फ्लैज खेलेगी, पूरी टक्कर देगी। और ये देखिए मैदान का विहंगम दृश्य, और यहाँ ये देखिए टॉस जो हो रहा है, भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रोहित पौडेल नेपाल के कप्तान। भारत ने टॉस जीता और भारत ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। कंग साहब, मैं जानना चाहूंगा कि नेपाल की टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनाकर वो आज प्रवेश कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। बड़ा अच्छा मैच खेला उन्होंने पीछे में, तो उस तरह से उनका विश्वास काफी बड़ा हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मंगोलिया के खिलाफ उन्होंने बहुत 314 रन बनाए थे, और जो उनका यहाँ प्रदर्शन रहा है, हाफ सेंचुरी में कीर्तिमान बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इसी मैदान पर नहीं, इसी टूर्नामेंट में नहीं, ये भारतीय टीम गायकवाड़ और यशस्वी जो 11 के 11 प्लेयर है, ये नेपाल की टीम आपकी स्क्रीन पर, बोरथेल, शेख, मल्ला, पौडेल, जोरा, एरी, झा, कामी, केसी, लामिछाने और बोहारा। तो एशिया कप में उन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया और उसमें भारत के सामने उन्होंने 266 रन बनाए। वो तो ये गनीमत रही कि भारत की बारी नहीं आई, बारिश हो गई, अन्यथा भारत के लिए मुश्किलें हो सकती थी। 266 रन 50 ओवर में कम नहीं होते प्रवीण। और बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया था, और नेपाल के खिलाड़ियों का भारत में खेलना, आईपीएल में खेलना एक बस बात को दर्शाता है कि उनका आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ है और काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। नेपाल का संदीप लामिछाने जो आईपीएल में खेलते हैं, बाकी कोई अभी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नेपाल में जो क्रिकेट की एक परंपरा चली, नेपाल के शाही परिवार के लोग जो भारत में और इंग्लैंड में एजुकेशन के लिए जब आए, शाही परिवार के लोग, उन्होंने आके इस खेल को अपनाया, देखा, बहुत अच्छा लगा उनको, यहां से वो सीख कर गए और अपने राजमहल के आसपास उन्होंने मैदान बनवाई। ये बात 1950-60 के दशक की है, और वहां से ये क्रिकेट भारत से सीख कर गए, इंग्लैंड से सीख कर गए, और क्रिकेट की जो नींव रखी गई। आज के जो अंपायर हैं आसिफ याकूब और महमूद खरोती, थर्ड अंपायर है रुचिया पालिया गुरु, और रेफरी ग्रीन लेब्रॉय। तो ये सोमपाल कामी गेंदबाजी क्रम प्रारंभ करेंगे। भारत के खिलाफ एक अच्छा क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा। पहला क्वार्टर फाइनल एक जबरदस्त मुकाबला होगा, और भारत की तरफ से बाएं हाथ के बैटर ओपन करने के लिए आए हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने काफी अच्छा पदार्पण किया है अपनी इस भारतीय टीम में, काफी अच्छा प्रदर्शन किया था वेस्ट इंडीज में भी, और एक अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, बड़े आत्मविश्वास से वो खेलने उतरेंगे, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी भारतीय टीम के द्वार के बाहर ही खड़े हैं और अच्छा प्रदर्शन उनको आगे तक ले जाएगा। द्वार के बाहर खड़े नहीं, द्वार खटखटा रहे हैं और तोड़कर अंदर आते हैं। इतना ज्यादा भारत के पास टैलेंट है एक एक सीट के लिए। और ये दूसरे अंपायर। तो आज का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 19वें एशियाई खेलों का। सोमपाल कामी शुरुआत करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड होनी चाहिए, और आसिफ भी उसको रोक नहीं सके, वाइड का इशारा। और क्या दौड़कर रन लेंगे, ये देखने वाली बात है। दौड़कर एक रन लिया गया, वाइड का इशारा भी किया गया। इस तरीके से वाइड से अतिरिक्त रनों से भारत की शुरुआत होती हुई। और अब ऋतुराज गायकवाड़ जो कि टीम के कप्तान है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला, तो उसमें 2 मुकाबले वो खेल के गए, सीरीज को जिताकर गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उस टीम में थे, और उसके बाद टीम ने यहां के लिए प्रस्थान किया। तो ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, ये 2 ऐसे नाम हैं जो आईपीएल में बहुत चमके। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला क्वार्टर फाइनल, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी प्रवीण सोनी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, खूबसूरत मैदान है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है, और भारतीय महिला, और उन्होंने ये विश्वास जताया था, बहुत अच्छी गेंद वहां पर ऑप्शन के बिल्कुल बाहर, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई, और अच्छे से देखा ऋतुराज गायकवाड़ ने। सेटल डाउन होना चाहते हैं, फिर अब लंबी पारी खेलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर वो एशिया के खिलाफ 2 मुकाबले खेल के गए थे, अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। मंगोलिया और मालदीव के खिलाफ 2 मुकाबले खेलने के बाद इस मैदान से पूरी तरह से परिचित हैं नेपाल की टीम। और मंगोलिया के खिलाफ तो 314 रन बनाए थे, और मालदीव के खिलाफ 212 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। ये T20 की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोर था ये। सोमपाल कामी की गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाया, बाहर की तरफ निकली। क्या बात है, गेंदों में गति ला रहे हैं, सीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही, कोई गलती अगर बल्लेबाज करे। ये देखिए सीम का इस्तेमाल किया,
सीम के सहारे पिच कराया और कितनी तेजी से बाहर गई। अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अच्छी लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करेंगे तो उसका क्या महत्व रहता है और भारतीय बल्लेबाज को दबाव में डालना चाहते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी 2 गेंदें खेली हैं, अभी अपना खाता नहीं खोला है और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सोमपाल कामी दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थे, इस बार ऑन साइड में मोड़ा, बल्ले से पहला रन मिला, जबकि गेंद को फील्ड किया जाता वहां पर रोहित पौडेल के द्वारा, जो कि मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं टीम के कप्तान, दौड़कर 1 रन पूरा किया गायकवाड़ ने अपना खाता खोला। अभी यशस्वी जायसवाल को अपना खाता खोलना है। 3 जो रन बने उसमें 2 रन अतिरिक्त रनों के तौर पर, 1 बाई का और 1 वाइड का। इस तरीके से भारत ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 2010 और 2014 में क्रिकेट को शामिल किया गया था, वहां भारतीय टीमें खेलने के लिए नहीं गई थी। ये गेंद इस बार निकाल दिया, ऑन साइड में गेंद जा रही है, कवर क्षेत्र में फील्डर उसके पीछे दौड़कर 1 रन पूरा किया। क्या है, दूसरा रन भी होगा, 2 की कॉल है, 2 रन मिलेंगे जरूर। और इस तरीके से 2 रन के बाद अब खाता खुला है जायसवाल का। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन बिना किसी नुकसान के। 2018 के जकार्ता एशिया खेलों में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनके पास क्रिकेट के मैदान नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी। और अब भारतीय टीम ने जो भेजा है महिला पुरुष टीम को, महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल में श्रीलंका को हराया। और अब भारतीय टीम से भी उम्मीद है कि स्वर्ण से कम क्या भारतीय टीम लेंगी। ये गेंद, इस गेंद को ऑन साइड में खेला और तेजी के साथ दौड़ पड़े रन लेने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो जरूर किया गया लेकिन रन अपना पूरा कर लिया गया। इस तरीके से गायकवाड़ के बल्ले से 1 और 2 निकले हैं, इस समय जायसवाल के बल्ले से 5 गेंदें हो चुके हैं। सोमपाल कामी जो कि दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, दूर से पहचाने जाते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। नेपाल के जितने भी तेज गेंदबाज हैं, नेपाल में त्रिभुवन इंटरनेशनल स्टेडियम बना था सन 1998 की बात है, जब मैं वहां गया था और वहां के रेडियो नेपाल के कमेंटेटर्स को भी ट्रेन किया था। उस वक्त पता लगा कि वहां क्रिकेट में कितने लोग उभर कर आ रहे हैं और कितने लोगों में जुनून है। और एशिया कप को नेपाल ने क्वालिफाई किया था हांगकांग को पराजित करके, उनके लिए एक प्रकार से मेला लगा हुआ था। आखिरी गेंद, इस गेंद पे बीट किया पूरी तरह से, भाग्यशाली रहे। पहले ओवर की समाप्ति 6 रन बिना किसी नुकसान के। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? स्वीट। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी, हाँ बोल दीजिए। सॉल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, पर नेपाल की गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। जायसवाल स्ट्राइक पर हैं। एशियन गेम्स का ये मुकाबला भारत के लिए पहला और क्वार्टर फाइनल में सीधा प्रवेश किया था भारत ने, और ये मैच भी भारत जीत कर आगे बढ़ना चाहेगा। धीरे से प्लेस किया उसे ऑफ साइड पर। यशस्वी जायसवाल जानते हैं कि क्रिकेट में स्कोर कैसे ग्राफ्ट किया जाते हैं, कैसे को स्कोर आगे बढ़ाया जाता है। अगर नेपाल के गेंदबाज भी जानते हैं कि उन्हें किस तरह की गेंदबाजी करनी है। पहला मैच या 2 मैच खेल चुके हैं वो, इस मैदान को भली भांति जानते हैं। और देखिए भारत की मेडल ताली जो है बढ़ती जा रही है। जो एक प्रण लिया था हम लोगों ने कि हम 100 के पार जाएंगे, तो उस रेस में हम काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय टीम एशियन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई, एथलेटिक्स, शूटिंग, हर गेम में भी देखा जाए भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम भी आज मैच जीत कर आगे बढ़ना चाहेगी और इस पोडियम पर फिनिश करना चाहेगी। खूबसूरत मैदान है, छोटा मैदान जरूर है मगर बहुत अच्छा मैदान चाइना में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कुमार, भूपेंद्र कुमार, अच्छी गेम थी, काफी अपील हुई वहां पर। अगर संबंध लेग से कुछ छोड़ती गेंद जाती है, ऋतुराज गायकवाड़ उतने विश्वास में नजर नहीं आ रहे। अभी शुरू के
ओवर्स हैं, हालांकि ऊंचा लगा होगा, थाई पैड पर गेंद लगी थी, इसलिए शायद अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। करण जो गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंद अंदर की तरफ गेंदबाजी को ला रहे हैं। 7 रन बिना किसी नुकसान के। जायसवाल ने उनको आके समझाया कि थोड़ा सा संभल कर खेलिए, लाइन लेंथ को पहले देख लीजिए और उसके बाद आप अपने स्ट्रोक्स खेलिए। खूबसूरत, एक तरफ पूरी वैली है, पहाड़ के ऊपर से बना हुआ है ये ग्राउंड, और एक तरफ दर्शकों के बैठने की बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही खूबसूरत मैदान यहाँ पर। एक बार फिर अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया उसे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा है और दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और स्कोर को चाहेंगे कि इस 20 ओवर में कम से कम 150-160 का लक्ष्य जो है वो नेपाल की टीम को दें। नेपाल की टीम भी काफी आत्मविश्वास से भरी हुई है क्योंकि एक रिकॉर्ड स्कोर बनाकर मंगोलिया के खिलाफ यहाँ पर मैदान में उतरी है और भारतीय बल्लेबाज चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर यहाँ खड़ा करें और फिर दबाव डालें नेपाल के बल्लेबाजों पर अब तक जो भी गेंदबाजी हुई है अच्छी गेंदबाजी हुई है। गायकवाड़ 2 रन बनाकर खेल रहे हैं और जायसवाल ने भी 4 रन बनाए हैं। एक बार फिर करण, बाएं हाथ के बल्लेबाज यशवी जायसवाल जिसका आगमन बहुत अच्छा हुआ भारतीय क्रिकेट के रूप में और ये उठाकर खेला है, बढ़िया आक्रमक स्ट्रोक, कोई मौका नहीं और ये गेंद 6 रन के लिए चली गई। पहला वहां पर बाउंड्री स्ट्रोक आता हुआ जायसवाल के for India. 印度边界6分。बढ़िया स्ट्रोक वहां पर ओवर पे किया, ढीलक स्टंप के ऊपर उसे उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। दर्शक में जहां पर बॉल बॉयज बैठे हुए हैं वहां पर जाकर गेंद लगी बैट पर। बहुत ही शानदार सिक्सर और अब हाथ खोलने शुरू किए। ये वॉलंटियर्स बैठे हैं जिनके पास जाकर गेंद गिरी और बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर और फिर एक बार गेंद को शॉर्ट ऑफ गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। Boundary for India. इस्तेमाल किया जा रहा है। 印度边界6分。दूसरा ओवर चलता है। बढ़िया स्ट्रोक जायसवाल के बल्ले से निकलते हुए 2 छक्के लगा दिए 2 ही लगातार गेंदों पे और एक मोमेंटम जो चाहिए था भारतीय टीम को वो दूसरे ओवर में मिलता हुआ और 20 रन बन चुके हैं। ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, पूरा फायदा उठाते हैं पावर प्ले का क्योंकि थोड़ा मैदान छोटा जरूर है मगर फिर भी आपको अच्छा स्ट्रोक खेलना होगा अगर आपको बाउंड्री स्ट्रोक कन्वर्ट करें। फील्डर मौजूद था वहां पर मगर गेंद काफी दूर और जाके वो जो नेट लगे हुए हैं उस पर जाके टकराई और शानदार 6 रन अर्जित करते हुए जायसवाल। भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस ओवर में लगभग 14 रन आ चुके हैं और देख लें कि अंतिम गेंद पर भी और फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया जो मिडॉन के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पे ले लिया गया है और बाकी 2 खिलाड़ी आप जानते हैं कि 6 ओवर में 30 रन के दायरे के बाहर रह सकते हैं। करण थोड़ा सा दबाव में जरूर है, अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले 2 गेंद अच्छी डाली उसके बाद 2 बाउंड्री स्ट्रोक्स आए वहां पर जायसवाल के बल्ले से, फिर उसको ड्राइव किया ऑफ साइड पर और मगर लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ पर फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति 21 बिना किसी नुकसान की। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो 2 ओवर के बाद 21 रन, तेज शुरुआत भारत की। सोमपाल कामिनी ने ओवर शुरू किया, पहली गेंद पर जायसवाल ने उसे धीरे से धकेला शॉर्ट कवर पर और दौड़कर 1 रन पूरा किया। कुछ परेशानी होती हुई जायसवाल को। साइड स्क्रीन के सामने कुछ अगर कोई दर्शक आते हैं तो अंपायर को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको वहां से हटाया जाए। सामने ये देखिए दर्शक हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ आए हैं, लेकिन ये है कि चाइना में क्रिकेट का होना और दर्शकों का बहुत बड़ी तादाद में आना एक सुखद आश्चर्य है। 7 गेंदों पर 18 रन यशस्वी जायसवाल के और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं। तो जायसवाल ने एक छोर संभाला है तेज गति से रन बनाने के लिए। अब सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। सोमपाल कामी हाथ से इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। एक बाउंस के बाद कोई मौका नहीं था
पहले से ही Boundary ball for India. इन चौके की मदद से 边界4分。 गायकवाड़ पहुंचे 6 पर और स्कोर हुआ 26 रन बिना किसी नुकसान के। अगर हम एशिया खेलों की बात करें तो भारत ने 1951 में 4 मार्च 1951 को पहले एशिया खेलों का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में। उस वक्त एम्फी थिएटर कहा जाता था नेशनल स्टेडियम जो है दिल्ली का। और उस वक्त भारत ने 52 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर था। जापान पहले स्थान पर रहा था। तो जापान लगातार डोमिनेट करता रहा और 1966 तक चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उसके बाद जब चीन ने एक बार एंट्री की 1981 से एलबीडब्ल्यू की अपील की गई जबरदस्त, लेकिन लेग बाई का इशारा होगा, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, पैड पे टकराई थी और यहां और रन मिलेंगे। मैं बात कर रहा था 1982 के नई दिल्ली एशिया खेलों में, ये देखिए काफी ऊंची थी, थाई पे टकराई। नई दिल्ली में चीन ने पहली बार टॉप किया और उसके बाद चीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 1986 सियोल में जब कोरिया ने आयोजित करवाए खेल, कोरिया दूसरे स्थान पर रहा था। पदकों की संख्या कोरिया की ज्यादा थी 224, चीन की थी 222, लेकिन चीन के गोल्ड मेडल ज्यादा थे, 93 थे कोरिया के, 94 चीन के। तो 1982 से लेकर आज तक चीन नंबर 1 पर रहता आया है और इस बार भी नंबर 1 रहेगा। बहुत बढ़िया। चाइना ने जब भी आगमन किया एशियन गेम्स के अंदर अपनी एक कहते हैं ना विश्वास को और एक अपनी ताकत को सिद्ध किया। और जिस तरह से कांग साहब ने बताया कि 1982 के बाद जब ये भारत में एशियन गेम्स हुए तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा था। उसके बाद बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भी शानदार प्रदर्शन था। और अगली गेंद एक बार फिर से निकाल दिया मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। यशस्वी जायसवाल को रोक पाना बहुत मुश्किल है इस समय। 8 गेंदों पर कुल उन्होंने बना ली। Boundary 6 for India. तीसरा ओवर चलता हुआ 33 बिना किसी नुकसान के। आज भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। डीडी स्पोर्ट्स के दर्शक और डीडी भारती के दर्शक इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। प्रसार भारती ने 19वें एशियाई खेलों के सीधे प्रसारण की विशेष व्यवस्था की है आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से। तैयार, सिंपल काम में किए गेंद, ओवर पिच गेंद थी, इस बार ड्राइव के अंदरूनी किनारा लगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन पर पहुंची, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ ही छोर बदला जाए। इस बार पहुंचे 25 पर, स्कोर हुआ 34 बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद है तो क्या अभी तक इस ओवर में 13 रन बन चुके हैं, क्या यहां चौका और छक्का देखने को मिल सकता है? क्योंकि भारत पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेगा। भारत को ध्यान है एशिया कप में नेपाल ने 266 रन बनाए थे और यहां मंगोलिया को केवल नेपाल ने 41 रन पर ऑल आउट कर दिया था। कामी की आखिरी गेंद लेग स्टंप के बाहर, उस गेंद को दिशा दिखाई, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन बिना किसी नुकसान के। कल नहीं आए, क्या हुआ? सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था। Be honest, be more milk. Amul. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है और देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। स्पिनर एरी आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि काफी दोनों ही बल्लेबाज अब आत्मविश्वास से खेलते हुए, खासकर यशस्वी जायसवाल ने बहुत बड़े बाउंड्री स्ट्रोक लगाए हैं। 25 रन बनाकर खेल रहे हैं 9 गेंदों पर और गायकवाड़ ने भी पिछले ओवर में दिखाया कि उन्होंने 2 बाउंड्री स्ट्रोक लगाए थे, वो 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत का स्कोर 38 बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर की शुरुआत और जैसा कि बताइए एशियन गेम्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, अच्छी गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, निकाल दिया उसे, मिड विकेट की तरफ फील्ड किया जाएगा, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन जरूर मिला वहां पर। और एशियन गेम्स में ये भारत का जो आज प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त चाइना में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, 60 मेडल हम जीत चुके हैं। जकार्ता एशियन गेम्स में हमने 70 मेडल जीते थे, तो आपका नारा था कि इस बार 100 के पार, तो उस दिशा में भारतीय
पूरे खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए बहुत शानदार प्रदर्शन है और बहुत सारे इवेंट्स अभी आने बाकी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम से भी उम्मीद है कि वो भी गोल्ड मेडल लेकर भारत वापस लौटेगी और देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय टीम खिलाड़ी किस तरह प्रदर्शन करते हैं। राउंड द विकेट गेंद को धीरे से प्लेस किया गायकवाड़ ने, ये अच्छी रनिंग मिड विकेट कही जा सकती है क्योंकि जानते हैं कि बाउंड्री पर फील्डर पर जो है धीरे से प्लेस करके रन लेना चाहते हैं, गति अपनी जो है वो अपनी मेंटेन करना चाहते हैं। जो टेम्पो चल रहा है 12 रन का औसत का, पावर प्ले में भारत जितने भी रन बना लेगा वो एक दबाव में आ जाएगी नेपाल की टीम। एरी जो कि दाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए इसको गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑन पर देखते हैं और ये गेंद के बाहर 6 रन के लिए। ये चौथा छक्का जायसवाल के बल्ले से निकलता है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 रन पर जा पहुंचे 11 गेंदों पर और 300 के स्ट्राइक रेट से, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पावर प्ले का क्या महत्व है, कितने स्कोर बनाने हैं और कितनी तेजी से रन बनाने हैं। मैं कांग साहब से पूछना चाहूंगा कि वो जायसवाल की बल्लेबाजी से कितने इंप्रेस्ड हैं। देखिए, जायसवाल को एक छोर पर कहा गया कि आप खुलकर खेलिए, कप्तान दूसरी तरफ है और नेपाल का जो ये आक्रमण है उसके सामने तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां पर बीट हुए, पूरी तरह से बीट कर गए और गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, क्या उसको रोक पाएंगे देखने वाली बात है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के करीब, शानदार फील्डिंग और यहां पर रन मिलने चाहिए जब तक कि गेंद को बैकअप करके फील्ड किया जाता अविनाश बोहरा के द्वारा। बाई का इशारा और इस तरीके से जायसवाल ने 11 गेंदों पर 32 रन बनाए हैं तो और चौथा ओवर अभी चल रहा है, 48 रन बने। तो मैं समझता हूं कि यहां पूरी तरह से मिस कर गए, बीट हुए विकेटकीपर और पहली स्लिप पर जो फील्डर खड़े थे। देखिए जो गेंद लास्ट टर्न हुई थी वहां पर धीरे से प्लेस किया, लॉन्ग वहां पर स्क्वायर लेग पर फील्ड किया गया, पैर के द्वारा फुटबॉल खेली गई मगर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर और इसके साथ ही भारत के 50 रन पूरे हुए और 34 पे जा पहुंचे हैं और 3.5 ओवर में 50 रन बन गए हैं। भारतीय की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है और ये बहुत बड़ी बल्लेबाजी जायसवाल द्वारा और आरडी गायकवाड़ भी, ऋतुराज गायकवाड़ जानते हैं कि उनको एक रन पर रोकना होगा और जल्दी से जल्दी रन बनाने होंगे। और देखिए क्या शानदार वहां पर फील्डिंग थी, पैर से गेंद जरूर करो मगर 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए और ये दर्शाता है कि टीम किस तरह से फाइट कर रही है। हर रन के लिए वहां पर रन बचाना दोनों टीमों के लिए बहुत मुश्किल होगा। 50 रन बिना किसी नुकसान के और ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद धीरे से और निकाल दिया, इस बार भी उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद होंगे नहीं, गैप में गई और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए और 4 ओवर की समाप्त की भारत का स्कोर 54 बिना किसी नुकसान के। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul Light, the only thing it's rich in is taste. चार ओवर में 54 रन, 13.5 के आसपास रन रेट है और यहां पर अब देखिए फर्क देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 गेंदों पर केवल 11 रन बनाए हैं कप्तान साहब ने और जायसवाल ने 14 गेंदों पर 38 रन बनाए हैं। नया ओवर शुरू होता हुआ करण केसी के द्वारा पहली गेंद गायकवाड़ ने उसको धीरे से धकेला और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता एरी के द्वारा दौड़कर छोर बदला। बार बार वो अपना छोर दे रहे हैं जायसवाल को कि आप तेजी से रन बनाइए, 1 रन की मदद से 12 पर पहुंचे ऋतुराज गायकवाड़। स्कोर हुआ 55 रन बिना किसी नुकसान के। सबसे बड़ी बात है, इस बात का बड़ा अफसोस होगा कि 2010 और 2014 में बीसीसीआई ने टीम क्यों नहीं भेजी, जबकि वहां भी भारत स्वर्ण पदक जीत सकता था। इस बार दोनों टीमें भेजी और दोनों से उम्मीद है कि महिला वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष वर्ग में भी स्वर्ण पदक से कम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी बीच तैयार, राउंड द विकेट, कट किया इस बार खूबसूरत तरीके से करण केसी की इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। Boundary for 15 गेंदों पर 42 印度边界गायकवाड़।
भारत 59 रन बिना किसी नुकसान के। चीन में ये तीसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है। सन 1990 में बीजिंग में, 2010 में ग्वांगझाऊ में, अब 2022 में जो खेल होने थे वो कोरोना की वजह से एक साल एक्सटेंड किए गए, 2023 में हो रहे हैं हांगझाऊ में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक भी हुए थे। तो चीन की अगर बात करें, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन में बहुत बढ़िया है और बहुत शानदार तरीके से इसका आयोजन होता है। कल इस पिच के ऊपर मैच नहीं हुआ था, दूसरी पिच के ऊपर मैच हुआ था, उसको ढका गया है। इस तरीके से टॉस जीतकर भारत पहले बल्लेबाजी करता हुआ। ये गेंद अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद है इस बार करण केसी की। राउंड द विकेट गेंद डाली गई थी, बमुश्किल विकेटों में जाने से रोका उसको, दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन की मदद से भारत का स्कोर हुआ 60 रन बिना किसी नुकसान के। 43 पर इस समय गायकवाड़। आपने बात की कि हमने पिछले एशियन गेम्स में टीम को नहीं भेजा गया था, शायद उस वक्त हमारा कैलेंडर इतना टाइट था कि हम नहीं भेज सकते, मगर इस वक्त हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की भी तैयारी चल रही है, वहां पर भी भारतीय टीम का प्रदर्शन चल रहा है और अब एशिया कप में भी हमकी टीम आई हुई है। तो भारतीय बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ 2 टीमें देखने को मिल रही है। 2010 और 2014 में भी भारत के पास एक दूसरे दर्जे की टीम हो सकती थी, बहुत खिलाड़ी थे और यहाँ पर हर टीम अपने दूसरे दर्जे की टीम ही भेज रही थी, तो वहां एक पदक चूका भारत। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार बीट किया गायकवाड़ को। अविनाश बोहारा, ये देखिए किस तरह से इस बार क्रॉस सीम को पकड़ा और जिस तरह से उन्होंने टप्पा खिलाया, गेंद तेजी के साथ ऊपर की तरफ गई, बाहर की तरफ निकली, बीट किया इस बार गायकवाड़ को। ये गेंद जो कि अविनाश बोहारा की थी, उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला, थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाया है बोहारा ने। अविनाश जो कि दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज है, फिर भी अभी तक 6 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी इस बार कुछ न कुछ करने के मूड में है और एकमात्र स्लिप जो संदीप लामिछाने के तौर पे लगाई गई। ये गेंद, इस गेंद को निकाला जरूर लेकिन रन नहीं, वहां मिसफील्ड हुआ, जहां रन नहीं होना चाहिए था वहां रन मिला। 1 रन और भारत के खाते में। 5 ओवर की समाप्ति, 61 रन बिना किसी नुकसान के। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Franchise T20 cricket. And of course, India, their franchise cricket is just the Indian Premier League. Their players aren't released to play in other leagues around the world. Oh, top edge. It's going to be safe. Well, the ball not getting a break at the moment. Just wonder how they're going to treat Sandeep Lamachan, who's played in the Indian Premier League. They would have seen him before. That could be the contest, the mouth-watering contest. Duggan again did well. Comes at a bit of pace. He just varies his pace nicely, doesn't he? A couple of good deliveries here for Nepal. To the left-hander as well, who's been scoring so easily. Didn't get all of that one. Just a single. Just almost at the end of the power play. Then they can
get a few boundary riders out there. Again, good place and good fielding as well. Very good over from Airy. Power play is done. 63. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The left-hander hitting away to the leg side with the spin. I just wonder how many legitimate leg spinners Sandeep will bowl to Jaswal, or whether he will bowl predominantly the wrong and the googly, the one that goes away from the left-hander. Ideally, Nepal would like Gaikwad on strike, the leg spinner bowling to the right-hander. India, though, traditionally very good players of spin. Got the slip in, that one that goes away. Yeah, not a leg spinner. He has been playing IPL for a long time, hasn't he? 17 years of age. He's played in, I think, about 24 teams in his career, so he's got a lot of experience. IPL, though, of course, will be the pinnacle. Just took his time, laid back, and just be a couple. There's a 2 googlies in a row. 2 balls spinning away from the left-hander that he's bowled. He'll spin his leg spinner more than his googly, but he will be nervous spinning it back into Jaswal. He's got a long arm, and he's got a deep mid-wicket. That's the 2 boundary fielders on the leg side. But he's gone the other side, and he's just hit it again. Almost out of the ground, certainly far enough for 6. Now, a lot of the top players will pick the ball out of the bowler's hand. They'll know which way he's trying to spin it once it's been released from the hand. Jaswal obviously feels that the ball's spinning away from him. He can go over the offside. And just with that reverse, gets it over the fielder who was there and was interested. 10 in 2 balls. He's accelerating again. Yeah, he's batting so quickly. We passed on his half century. Not that there was a celebration from him. Jaswal, 56 now of 23 balls. And again, there was no clapping from the dugout. There was no raising of the bat. Highest score in a T20 international for him is 84. Keeper is quick to make sure there's no single. What a place to witness these 2 go about their business behind the stumps. I don't think Nepal will be overawed particularly, but they are playing against some of their heroes, I would have thought.
wicket wasn't the big hit on, but still easing a single and keeps the strike. 7 overs gone, 76 in that loss. A wonderful opportunity. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। To a bit of pace at the library end. Looking to lift it over the keeper. Couldn't quite get the angles right. Casey Curran is back at that far end. He'll be feeling the heat after his first over went for 15. पहले हो गया, थोड़ा लेट होना चाहिए था। A good attempt, but it's going to go for 4. Boundary for India. It's clinical. It really is clinical batting, though. And the thing is, they don't try it. They play a particular stroke to the delivery that's bowled. It's full, it's outside off stump, purposely goes over extra cover, knows there's a big gap out there, even though there's a sweeper on the offside fence. Adele, the captain, with the dive, and he was well short. Well, there are 2 there, just behind square, and it dissected them. For India. Up and over. Up and over, short third. There's a backward point as well, but it's short enough, and there's enough room for Jaswal to execute this. But again, it's exactly what he wants to do. He doesn't want to hit that on the ground. It's an exhibition of batting going on here. Yeah, strike rate up at around 230. Gardner just chugging along at 82, which is fine in this condition. Precious dot ball. It's a very dangerous tactic to try and run in and bowl Yorkers so early on because of the margin for error. But it seems as that they bowl them pretty well, Nepal. And maybe that's the answer, because from around the wicket, if he bowls a length and he bowls seam up to Jaswal, he could disappear. Because this is bowling right into the hitting zone of the left-hander. Swing and a miss. Little look at the umpire. No wide given. Did you see where he bowled that from? I think he bowled that from just in front of the umpire. Well, he can't bowl it too far forward, but we're all about, well, it depends how far back you are, about how far back you bowl it. Coming around the wicket. Again, good length. He will feel, as well, that he's missed out a little bit there. Quieter over. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ
चल नहीं रहा है? छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The right-hander has been a little quiet by his partner's standards. It does look like he's just happy to take the single and watch the fireworks. And now Sandeep will bowl predominantly the leg spinners to go away from the right-hander. Oh, just dismissive, one bounce, just a flick. Boundary ball for India. Overpitched. Well, this is hitting it with the spin. Such good wrist work. There's a man down there. They're looking for two, and they will get there easy enough. Nepal is waking up. 90 on the board already. Not got past the halfway mark of this innings. Deal with that so well, but again, they'll trot for a single. Looks like the Indians in the crowd have woken up as well. Bit of noise from them. They'll have their support, that's for sure. All around the world. Just the one. Kami will field, and there's nigh on this over. You want to finish with a decent delivery here. 8 at the moment is a minor victory for Nepal as it's going. Oh, again, just stroked so effortlessly. Boundary ball for India. They really are good players of spin. And we've seen every single. चलो 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 take a break चलो वहाँ हर बाइट में real मिल गया जहाँ चलो 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 let's all go for an Amul ice cream चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है दिल को जो बहलाना है let's all go for an Amul ice cream chocolate rajbol dry fruits mango go 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 let's all go for an Amul ice cream real milk real ice cream हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी I think they would put in follow on. And, back to spin and back to the boundary. Airy bowled a good first over. Boundary ball for India. The Yorkers, looking for the Yorkers, and if you don't find it, you go.
Easy run. Might be 2 there. The first 2 overs he had gone for 8s. Now he's gone for 6 in 2 deliveries. So 100 is up, and they are just starting to raise the run rate as well. Whether he got to delivering, didn't feel the ball was right in his hand or what was going on, but anyway, we'll try again. Umpire is unmoved. Crowd is still appealing for that one. just pitched outside leg stump, maybe just outside. Get up the other end, out of the way, rotate the strike. Yeah. It was a good shout. He's gone aerial. He has not got all of that. And the first wicket goes down. Pick what it is who has to go. For once, it wasn't timed properly. 31 better. Out. 4. बैग किसका है? मेरा नो फ्रूट ऑन प्लेट. नहीं है. अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? So that'll be an uplifting moment for Nepal. He has it's a strike rate that is so impressive. Strike rate of over 130, 138. Don't worry too much about the averages. It's as long as that strike rate is up there. But Airy's certainly been the pick of them. Off the mark straight away. He went for a boundary off his first delivery, Airy, and then fought back well, so he's still going at 8 and over.
The 10th He over has the Indian concluded. captain. 104 runs for India. One batter out. ये बरेली वाली चाय दस ओवर का खेल हो चुका है। भारत ने 104 रन बनाए हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे वहां पर। मिड विकेट पर शानदार कैच पकड़ा था कप्तान रोहित ने। और तिलक वर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज अब मैदान पर। जायसवाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। 36 गेंदों पर 73 रन बनाए हैं। लगभग 200 का औसत स्ट्राइक रेट है उनका। और तिलक वर्मा ने अभी अभी आगमन किया है। 1 रन बनाया है उनका। 11वां ओवर चल रहा है और भारत का स्कोर 104 रन 1 विकेट नुकसान पर। तेजी से 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। और ये अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट की। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों से आंखों इशारा किया और छोर बदल लिया। भारत अब जो एक समय जो रन गति 13 के आसपास थी अब लगभग 10 के आसपास है। और क्योंकि अब अच्छी गेंदबाजी हो रही है, धीरे से प्लेस किया था ऑफ साइड पर और 1 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। तिलक वर्मा खेल रहे हैं 2 रन बनाकर और यशवी जायसवाल ने बनाया 73 आगे आके इसने उठा दिया 1 स्कोर बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। स्टेडियम के लगभग बाहर चली गई थी मगर ट्रेन के साथ लगकर गेंद वापस मैदान में आती हुई 6 रन का इशारा था। 11 ओवर की समाप्ति है। भारत का स्कोर 111 1 विकेट नुकसान पर। ग्यारह 1 विकेट नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। किस तरह देख रहे हैं आप भारत की स्थिति को इस वक्त? शुक्रिया प्रवीण जी। यह बहुत बढ़िया यहाँ पे एक स्टार्ट मिला है। एक अच्छी नींव रखी है, खासकर जायसवाल जिस अंदाज से वो आगे बढ़े हैं। 1 विकेट जरूर गंवाया है पर बड़ी चीज है कि रन आए हैं और यहाँ से क्योंकि विकेट आपके हाथ में है, 9 विकेट अभी शेष है भारत के पास, तो एक अच्छा लॉन्चिंग पैड है। एक ऐसी टीम नजर आती है प्रवीण जी, भारतीय साइड जिसमें काफी टैलेंट है, काफी क्षमता है। कई खिलाड़ी आईपीएल खेल चुके हैं। वो एक्सपीरियंस हमेशा आपके हित में रहेगा, आपके काम आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और इस बार थोड़ा बल्ला घुमाया था। अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन से गेंदबाजी करी है पर हमेशा एक अहम चीज रहेगी अब नेपाल के लिए कि संदीप लामिछने वो किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। सोमपाल गेंदबाजी की शुरुआत की थी, यहाँ पे कट करने का प्रयास, चूके बहुत करीब था बाहरी किनारे के, तभी अब थोड़ी से वहां पे उत्तेजित नजर आए प्रतिक्रिया गेंदबाज की।
गेंदबाजी हो रही है वहाँ पर इस ओवर में खासकर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर ये नेपाल के गेंदबाजों द्वारा। ये ओवर अभी काफी अच्छा ओवर गया है उनके साथ। 3 गेंदों पर केवल 1 रन आया है। हाँ, आ रही है। और हमें देखा है सतह में प्रवीण, जब भी गेंद को आप विकेट विकेट रख रहे हैं ना, कई बार इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा उछाल भी नजर आ रहा है और खासकर सोमपाल वो कंधे का अच्छा प्रयोग करते हैं, जिस कारण वो अधिक रफ्तार भी उनको प्राप्त होती है। जायसवाल के लिए ये एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे मिली, अच्छे टच में नजर आए हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है, जैसे उन्होंने रन बनाए, इस बार फुल करने का प्रयास और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। एक और सफलता मिलती हुई, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था वहां पे। शानदार विकेट मिलता हुआ वहां पर नेपाल को। एक गेंद छोड़ी, बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ गेंद नहीं थी, वहां पर पुल करना चाहते थे। वहां पर क्लीन बोल्ड पैट को लेकर गेंद स्टंप में चली गई और शानदार गेंदबाजी इस ओवर में। और एक बार फिर थोड़ा सा दबाव, जितेश शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छे विकेट बैट्समैन है जिन्होंने आईपीएल में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं। और देखना होगा कि अब यहां से भारतीय टीम कितने बड़े स्कोर की ओर आगे बढ़ती है। जितेश शर्मा अच्छे विकेट बैट्समैन, अच्छी ग्लैबर गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार और अच्छा उछाल भी है वहां पर। और ये जब भी अच्छी लाइन पे गेंद होती है और उछाल भी वहां पर मिल रहा है। यार ये गेंद उनके ग्लव पे लगी थी क्योंकि अधिक उछाल था, जैसे आपने कहा, क्योंकि कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कैसे वो अधिक उछाल और एकदम सीधा बैट से खेलने का प्रयास कर रहे थे। जितेश अभी भी आए हैं। कई बार वो ग्लव में लगती है ना, उंगलियों में गेंद लगती है, थोड़ी सी दर्द आपको जरूर महसूस होती है। और ये समस्या है सदे में। कुछ गेंदों को देखा था हल्की सी नीची रही थी, यहाँ पे अधिक उछाल। अब वो फिजियो अंदर आएंगे, कई बार वो बिल्कुल जो उंगली है वो फंस ही जाती है, वो जो बल्ला है और ग्लव के बीच में। और अच्छा ये ओवर आया। और एक बार फिर वहां पर थोड़ी सी चोट लगी थी। वहां पर जितेश शर्मा को गेंद ने उछाल लिया था, ग्लव्स पे लगी थी और थोड़ा सा गेंद रुका था। 111 रन बने इस ओवर में, काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है। एक बार फिर अलग संपर वो गेंद थी, शायद हम वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और 1 रन और अतिरिक्त खाते में जाता हुआ 112, 2 विकेट के नुकसान पर। यह काफी नियंत्रित गेंदबाजी की है, हालांकि इस समय थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए थोड़ा एंगल का इस्तेमाल कर रहे थे। वाइड द क्रीज जाके गेंद को अंदर लाने का प्रयास कर रहे थे, तभी वो नियंत्रण नजर नहीं आया। वाइड का इशारा एम्पायर का। पर जायसवाल ने जैसे बल्लेबाजी की, हमें लगता है कि बहुत बड़ा कारण है जहां तक
भारत अभी तक पहुंचा 112 पे 2, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार उठा के खेला है, संपर्क वैसा था नहीं पर रन मिलेंगे और मिलेंगे 4 रन। 116 पे 2 भारत। Boundary for India. और 12 ओवर की समाप्ति है। भारत का स्कोर 116, 2 विकेट नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल अभी भी खेल रहे हैं 79 रन बनाकर 37 गेंदों पर। और एक बार फिर गेंद को निकाला मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील किया जाएगा, 1 रन मिलेगा वहां पर। और जायसवाल का खड़ा रहना बहुत जरूरी है कि अगर अंत तक वो खेलते रहे तो भारत 180 और 200 के बीच में जरूर पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं नेपाल चाहेगी जो नया बल्लेबाज है उसको ज्यादा गेंदबाजी की जाए, क्योंकि जायसवाल सेट है, अब उनकी आंखें जमी हुई हैं, उनके लिए ज्यादा आसान रहता है। और हमें देखा ये सतह उतनी आसान है नहीं नए बल्लेबाज के लिए। तो यही कारण था कि भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया कि आप वो बड़े रन बनाना चाहते हैं पहली इनिंग्स में, फिर दबाव डालना चाहते हैं नेपाल के ऊपर। एक स्लिप थे रात, पिछले ओवर में बाउंड्री मिली थी जितेश को। थोड़ा सा अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो सिंगल्स पे, वो सिंगल्स की तलाश में नजर आ रहे हैं। जितेश शर्मा विकेट कीपर बैटर हैं, प्रभ सिमरन एक और विकल्प है बतौर कीपर जिनको ये मुकाबला खिलाया गया नहीं। और 2 कीपर्स हैं इस भारतीय दल में, इस लाइनअप में। जायसवाल जिसको काफी उम्मीद है भारत को, 38 पर गेंदें खेली हैं और 80 रन बना चुके हैं। भारत चाहेगा कि जायसवाल अंत तक खेलते रहें और भारत का स्कोर 200 के आसपास जरूर पहुंचे, क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, बढ़िया बल्लेबाजी करके आए हैं, क्योंकि पिछले मैच में रिकॉर्ड स्कोर उन्होंने बनाया था और काफी आत्मविश्वास से भरी हुई टीम नजर आ रही है। और ये गेंदबाज हैं जिन पे नजरें रहेंगे संदीप लामिछा ने। भारत में अब हमने इनको आईपीएल में भी खेलते हुए देखा है, एक्सपीरियंस इनके पीछे है, अच्छे लेग स्पिनर हैं। फिलहाल ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि काफी फील्डर्स डीप में तैनात हैं ऑन साइड पे, तो बिल्कुल वो मिडिल लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर जायसवाल के विरुद्ध। थोड़ा तेज गति से भी कर रहे हैं क्योंकि कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं जायसवाल। वो जानते हैं क्योंकि आईपीएल में उनको खेलने का काफी अनुभव है और वो जानते हैं कि बल्लेबाज किस तरह से आगे आके स्ट्राइक खेलते हैं, तो उससे अच्छी लेन ये आगे आके खेल दिया है और यहाँ पर वो फंस गए हैं मेरे लग रहा है जितेश शर्मा। और ये कॉटन बोल्ड पर बहुत बढ़िया जैसे कहा उसने अपने अजय मेहरा ने, और तीसरा झटका भारत को लगता हुआ। तीसरा विकेट भारत ने खो दिया है जितेश शर्मा के रूप में। तिलक वर्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ऋतुराज गायकवाड़ को एक शुरुआत मिली थी, अब एक और लेफ्ट हैंडर आए हैं शिवम दुबे जो कि ऑलराउंडर हैं, इनके बाद वो क्षमता है वो बड़े शॉट्स लगाने की। पर एक ऐसे समय आए जब गेंदबाजी इस समय खासकर प्रवीण बहुत बढ़िया नजर आ रही है नेपाल की।
और नए बल्लेबाज जरूर दबाव में रहेंगे, क्योंकि 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी भारत के गिर गए और तिलक वर्मा ने भी बहुत निराश किया और जितेश शर्मा ने भी। अच्छी गेंदबाजी और उसका परिणाम यह है कि अच्छे रन गति में काफी रुकावट आई है। 13 ओवर की समाप्त 119, 3 विकेट नुकसान पर। The 30th over concluded. और अविनाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी और देखना है कि अब भारत यहां से कितनी तेजी से रन बनाता है। हालांकि बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है, रिंकू सिंह भी हैं और अभी तक जायसवाल खेल रहे हैं और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे थोड़ा सा जमाए, अपनी पार्टनरशिप वहां पर चाहिए भारत को। आगे 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 उससे ड्राइव किया वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। और अब शिवम दुबे के ऊपर दारोमदार है। शिवम दुबे में क्षमता जरूर है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की, आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस साल, उनका बहुत बढ़िया रहा था। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भारत का एक विकल्प को मिल सकते हैं या बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्राइकर हैं और शायद इस समय आए हैं जब टीम को दरकार है कुछ अच्छे ओवर्स की, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। अब जायसवाल क्योंकि सेट है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अंत तक खेलें, पर साथ में हमने ज़्यादा साझेदारियां देखी नहीं है। शुरू में जरूर ऋतुराज गायकवाड अच्छी साझेदारी निभा रहे थे जायसवाल के साथ, फिर तिलक वर्मा और उसके बाद जितेश शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए, निराश किया उन्होंने। थोड़ा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं जायसवाल, जो कि अच्छे संकेत है, तभी एकदम वो इशारा। और दोनों ही बल्लेबाज अगर आप देखें ना तो एक ही स्टेट से खेलते हैं, मुंबई से, जायसवाल और शिवम दुबे, तो वो तालमेल कई बार और बेहतर नजर आता है। बड़ा मुकाबला, एक क्वार्टर फाइनल स्टेज है। नेपाल की टीम जरूर कुछ मुकाबले इस पहले यहाँ पे खेल चुकी है इस मैदान पे, तो कंडीशन से जरूर वाकिफ है। इस बार उठा के खेला है और गैप में मिलेंगे 4 रन। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई थी, हालांकि गेंद इतनी खराब थी नहीं, पर बहुत ही कमाल का शॉट वहां पे। लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था, थोड़ी सी जगह बनाई, अब फुल लेंथ की डिलीवरी थी। और क्या बल्लेबाजी आज की है जायसवाल ने, कोई मौका गवाया नहीं आज, जो भी मौका उनके हाथ लगाया उसका पूरा लाभ उठाया है। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छे बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले हैं, जब भी मौका मिलता है और पूरा फायदा उठाते हैं खराब गेंद का। एक बार फिर उठा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये गेंद मैदान से काफी दूर गई है, मुझे लगता नहीं ये गेंद वापस आएगी, क्योंकि एक तरफ जो है बिल्कुल पेड़ क्योंकि जंगल की तरह है और उस तरफ गेंद गिरी है। और शानदार बल्लेबाजी, जायसवाल जानते हैं कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। 131 भारत 3 विकेट नुकसान पर 92 रन पर जा पहुंचे हैं, 43 गेंदों पर जायसवाल। या और क्या शॉट था, क्योंकि लेंथ को परख लिया था, थोड़ा क्रॉस लाइन गए थे। और ये कारण है कि जिस स्थिति में भारतीय टीम है, और देखिए काफी दूर गेंद जाके गिरी है, वहां पे नेट्स भी हैं, पर नेट्स के भी पार जाके गेंद गिरी है वहां पे। क्या कमाल का टाइमिंग, क्या संपर्क, थोड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत ही खूबसूरत मैदान है ये। एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड है जहां पे मुकाबले खेले जा रहे हैं क्रिकेट के। इससे पहले जो भारतीय महिला टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अब भारतीय पुरुष टीम की बारी है। पर जायसवाल आज जिस लय में नजर आए हैं, जो कॉन्फिडेंस उनके पीछे नजर आया है, वो देख के अच्छा लगा। 92-43 गेंदों का सामना किया। शिवम दुबे अभी भी आए हैं, थोड़ी चिंता है यहाँ पे नेपाल के लिए, क्योंकि जब एक बार आप 200 सवा 200 का स्कोर बना लेते हैं ना प्रवीण, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी आपके ऊपर रहता है रन चेज करते हुए, वो इतना आसान रहता नहीं है।
देखिए आजकल जो क्रिकेट खेली जा रही है उसमें काफी अच्छे जो स्कोर बन रहे हैं और काफी अच्छे स्कोर चेस भी हो रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कल रात को जो एक मैच हुआ वहां पर ऑस्ट्रेलिया और वुमेन्स का और वेस्ट इंडीज वुमेन्स का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए थे और 213 रन बनाकर वेस्ट इंडीज ने वो मैच जीता। तो बल्लेबाजी अगर स्ट्रांग है तो आप कोई भी रन चेस कर सकते हैं, मगर भारत अभी भी मजबूत स्थिति में है। 132 3 विकेट नुकसान पर जसवाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी लय में है। इसके बाद रिंकू सिंह का आना बाकी है। और भारतीय गेंदबाजों की बात करें, साई किशोर है, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई। इस बार वो यॉर्कर लेंथ करने का प्रयास, 1 रन और मिलेगा। 14 ओवर की समाप्ति, 133 पे 3। शुद्ध पानी। और अब भारत को 23 रन बनाने होंगे। 14 ओवर का खेल हो चुका है, अब 9.5 रन के औसत रन बन रहे हैं। शिव दुबे भी अब थोड़े थोड़े सेटल होते जा रहे हैं। पार्टनरशिप अच्छी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है रिंकू सिंह बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, एक अच्छे फिनिशर के रूप में मैं देखा था उनको आईपीएल में। और अब देखना होगा कि यशस्वी जायसवाल जो अपने शतक के बहुत करीब है, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनसाइड आउट जाते हुए वहां पे। हालांकि अच्छा एफर्ट था और हल्का सा वो थ्रो इतना बढ़िया था नहीं, सोच थी 1 रन लेने की, पर वापस भेजा शिव दुबे ने। कुशल फील्डर थे डीप में, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी नेपाल। अभी जो वर्तमान औसत है लगभग 9.5 की। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल वो पैड लाइन पे, क्योंकि प्रोटेक्शन है डीप में आपके पास। एक डीप मिड विकेट है, एक डीप स्क्वेयर है, एक लॉन्ग ऑन, तो 3 बाउंड्री राइडर्स है, तभी इस लाइन पे पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं थोड़ी सी जगह देंगे या फ्लाइट करेंगे फिर मुश्किल हो सकती है। ऐसे थोड़ा परख लेते कि बल्लेबाज क्या करना चाहता है, क्या कदमों का इस्तेमाल करना चाहता है। रोहित थोड़ा सा रुक गए, फिर वो मुस्कान भी उनके चेहरे पे। और ये गेम्स के अंदर ऐसे टैक्टिक्स चलते रहते हैं, थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करते हैं, बल्लेबाज थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि धीरे धीरे रन बन रहे हैं और धीरे से प्लेस ऑन साइड में। ऑन साइड के जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्री राइडर्स पे हैं, तो मौका है भारतीय बल्लेबाजों को प्लेस करके रन लेने का। और अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ पर गेंदबाज। और ये अच्छी बात है कि अंकुश लगा रखा है उन्होंने रन गति पर। और अच्छी सोच भी है ना प्रवीण, क्योंकि आप देखिए दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो अपने ऑफ स्पिनर को लेके आए हैं। कई बार हमें देखा है गेंद काफी टर्न भी हुई है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं रोहित। ज्यादा गेंद को फ्लाइट दे नहीं रहे, हवा दे नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं कि जो बाउंड्रीज है इतनी बड़ी है नहीं। कई बार वो मिस हिट भी अब वो 6 रन के रूप में अब चली जाती हैं, तो तभी थोड़ा तेज गति से कर रहे हैं गेंदबाजी। और वो पैड लाइन पे वो पैड पकड़ के गेंदबाजी करने का प्रयास करें। 138 पे 3। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। Amul, the taste. Amul Light, the only thing it's rich in is taste. शिवम दुबे
के ऊपर काफी उम्मीदें हैं कि आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, मगर अभी आए हैं, सेटल हो रहे हैं, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, 7 गेंदों पर 5 ओवर का खेल बाकी है। तो भारत की कोशिश है कि 5 ओवर में कम से 50-60 रन जरूर बना लें और लगभग 190-200 के आसपास स्कोर को जरूर लेके जाए, क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है। हालांकि 2 मैच यहाँ खेल चुके हैं और यहाँ की कंडीशन को बड़ी भांति जानते हैं। अच्छी गेंद वहां पर उछाल लेती हुई धीरे से खेला उसे ऑन साइड पर और कोई रन नहीं। 15 ओवर्स खेले जा चुके हैं, अब 138, 3 विकेट नुकसान पर। मैं पूछना चाहूंगा अजय मेहरा, कितने रन और देख रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से इन बचे हुए 5 ओवरों में? देखिए, मुझे लगता है अभी भी जरूर भारतीय टीम प्रयास करेगी। अगर आप 180, 190 या 200 के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां तक आप पहुंचना चाहेंगे। एक समय ऐसा लग रहा था जो स्टार्ट मिला था प्रवीण की कम से कम 225, 250 रन तक भारत पहुंचेगी, पर उसके बाद वो 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। और इस बार बारीक किनारा, बाल बचे वहां पे और साथ में मिलेंगे 4 रन। अविनाश थे फील्डर जो कि कैच के लिए गए थे। हालांकि ये बाउंड्री रोकनी चाहिए थी, खासकर इस स्तर पे, इस लेवल पे, पर जो भी है शिवम दुबे को मिलती हुई ये बाउंड्री और 4 रन। भारतीय समर्थक काफी खुश होंगे, पर थोड़ा अटपटा सा शॉट था, बिल्कुल पोजीशन में आ नहीं पाए थे शिवम दुबे। शॉर्ट ऑफ गेंद थी, थोड़ा सा उछाल लेने की कोशिश करी जब आगे खेलना चाहते थे, मगर वहां पर टॉप एच लगा और गेंद चली गई थर्ड मैन पर और थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। बॉलर वहां पर नाराज सोमपाल, और क्योंकि अविनाश थे वहां पर रन बचाया जा सकता था, क्योंकि वो दुविधा में थे कि आगे कैच को पकड़े या ना पकड़े, और इसी दुविधा में उन्होंने मिसफील्ड किया और 4 रन अर्जित कर दिए। ये अच्छा स्ट्रोक था वहां पर, शॉर्ट ऑफ गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा और शिवम दुबे थोड़ा सा विश्वास प्राप्त करते हुए 10 रन पर जा पहुंचे हैं और 95 रन बनाकर खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। या निगाहें इनके ऊपर होंगी, जायसवाल के ऊपर, जैसे बल्लेबाजी की है, डिजर्व करते हैं एक शतक, और फिर एक बार जब शतक लग जाएगा ना, शायद उसके बाद और खुल के बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अब गजब का स्ट्राइक रेट इनका अभी भी है, ऐसे नहीं कि खुल के बल्लेबाजी अभी नहीं करी है, पर शायद फिर एक लाइसेंस होगा कि अंतिम कुछ ओवर्स रह जाएंगे। इस बार इम्प्रोवाइज किया है, कनेक्शन बहुत शानदार, और शायद मिलेंगे यहाँ पे 6 रन, यानी कि वो शतक पूरा किया जायसवाल ने। कमाल की ये पारी रही है, पहला मुकाबला उनका एशियन गेम्स में, और जिस प्रकार आगे बढ़े और जैसे ये बल्लेबाजी की है, डिजर्व करते हैं शतक। हालांकि वो स्कोर 99 है, पर यहाँ पे सेलिब्रेशन नजर आ रही है। क्या गेंद वो सीमा रेखा के बाहर गई थी, शायद वो चेक भी करेंगे ऑन फील्ड अंपायर्स। अंदर लैंड हुई है तो ये 4 रन होंगे। हालांकि वहां पे पूरी सेलिब्रेशन नजर आई, तो यानी कि अब 99 पे ही है, अभी 1 रन दूर है। सेलिब्रेशन पहले नजर आ गया वहां पे जायसवाल का, क्योंकि फील्डर का इशारा आया था 6 रन का, मगर जब थर्ड अंपायर ने उसको ध्यान से देखा तो गेंद बाउंड्री के अंदर पड़ गई थी और अब 99। अब तो दोबारा सेलिब्रेशन देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा। 99 के फेर में काफी बैट्समैन आउट हो जाते हैं और वहां पर दुबे बात करते हैं उनसे कि आराम से खेलिए, 1 रन लीजिए और पर शतक पूरा कीजिए। चलिए, क्या इस गेंद पे शतक पूरा करेंगे? जी हाँ, अब शतक पूरा कर लिया है। सेलिब्रेशन पहले भी नजर आई थी, पर ये 100 रन जायसवाल द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी रही है, बहुत शानदार। अब वो मुस्कान भी उनके चेहरे पे, और दूसरी बार सेलिब्रेट किया है, पर इस बार जी हाँ, वो सिंगल के तहत अपना शतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 印度队64号击球员获得100分。 एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है भारतीय टीम के लिए जायसवाल ने। हालांकि सोमपाल थोड़े महंगे साबित हुए हैं, पर पैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है सोमपाल ने। शिवम दुबे फिलहाल स्ट्राइक पे, यॉर्कर की गेंद के बल्ले का चेहरा खोला, 1 रन और मिलेगा। 149 पे 3। चलो चलो चलो, टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल गया जहाँ। चलो चलो चलो, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो चलो चलो, मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। Let's all go for an Amul ice cream. Chocolate, Rajbog, dry fruits, mango. Go, go, go. Let's all go for an Amul ice cream. Real milk, real ice cream.
कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। इस्वाल ने अपना शतक पूरा किया और अब आत्मविश्वास से एक बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट उनका। अब देखना है बचे हुए 4 ओवर में कितनी तेजी से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं और शिवम दुबे ने भी हेलमेट उतार लिया, तो उनका भी आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। बढ़िया स्ट्रोक वो भी खेलते हैं, हमने देखा था आईपीएल में इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका। ड्राइव किया उससे पहले ही गेंद पर ओवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर मिसफील्ड हुआ, पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। इसके साथ ही भारत के 150 रन पूरे हुए। थोड़ा सा जो रन रेट है अपना, जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पे अब शिवम दुबे। अब जायसवाल अपना शतक लगा चुके हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया हवा में और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। वो संपर्क वैसा हुआ नहीं था। वो सफाई से पकड़ा या नहीं, क्योंकि आगे डाइव लगाई थी फील्डर ने। दूसरा शायद गेंद कमर की ऊंचाई से ऊंची भी हो सकती है। दोनों ही चीजें देखना चाहेंगे हम, थर्ड अंपायर से बात करना चाहिए। हालांकि फील्डर्स के कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि कैच बहुत क्लीन था, अगर अंपायर उसको भी देखेंगे। और ये गेंद जो फुल टॉस के रूप में थी, क्या कमर की ऊंचाई से ऊपर थी या नहीं। और एक और चीज देखेंगे ना प्रवीण की, कदमों का इस्तेमाल करके आगे भी आए थे जायसवाल, तो अपनी पोजीशन में थे नहीं। पहले लीगल डिलीवरी, बिल्कुल सही डिलीवरी, इसमें कोई शंका नहीं है। पर उसके बाद जैसे आपने कहा, बिल्कुल वो हाइट भी देखेंगे, पर ये भी है कि काफी आगे निकल के वो शॉट खेलने का प्रयास किया था। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, ये ठीक नजर आ रहा है, इसमें कोई दुविधा है नहीं, क्योंकि अब काफी आगे निकल गए थे, तो फिर वो ट्रेजेक्ट्री जो है, जी हाँ, भारी किनारा लगाया। और उसके बाद देखा जाएगा वो जो कैच है, जो शॉट थर्ड में लिया था, क्या सफाई से लिया। अब ये वेस्ट लेवल से गेंद नीची नजर आ रही है, ये पक्ष में जाएगी या फील्डिंग साइड के, यानी कि गेंदबाज के। और सफलता मिलती हुई, यानी कि जायसवाल वापस जाते हुए अपने शतक लगाने के बाद। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। कैंट से पानी होता है 100%। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रिंकू सिंह, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और देखना है कि वो बचे हुए 4 ओवरों में कितनी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं। और भारत में एक सम्मानजनक टोटल अभी कही जा सकता है, मगर एक बहुत फाइटिंग टोटल जो होगा, चैलेंजिंग टोटल होगा नेपाल के लिए, वो खड़ा करना चाहेंगे शिवम दुबे और रिंकू सिंह। या अगर आप 200 के करीब पहुंचते हैं ना प्रवीण, फिर वो दबाव रहता है, वो रनचेज इतनी आसान रहती नहीं, लगभग 10 रन प्रति ओवर। ये दो ऐसे बैटर्स हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं जो अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। यहाँ पे मिलेंगे 4 रन। 2 फील्डर्स ने प्रयास किया, पर बिल्कुल गेंद भेजती हुई उनको। फील्डिंग एफर्ट उतना अच्छा था नहीं, कुछ अपने वो लैप्सेस देखे हैं फील्ड में। अविनाश को भी देखा था, एक चौका उन्होंने छोड़ा था जब कैच के लिए गए थे। इस बार फिर से गेंद को रोकना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल हाथों के नीचे से गेंद निकली। उसके बाद एक और फील्डर ने भी प्रयास किया, पर नतीजा वो 4 रन। जोरा भी अब गेंद को रोक नहीं पाए। अविनाश से दूसरी बार मिसफील्ड हुआ है, 2 चौके उन्होंने दे दिए। बॉलर्स नाखुश हैं उनकी फील्डिंग के प्रयास से, हालांकि कोशिश जरूर अच्छी करी थी उन्होंने। और 1 रन और अर्जित करते हुए वहां पर शिवम दुबे 156, 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय का स्कोर है। और बचे हुए देखना है कि 3 ओवर इनिंग्स के बाद रहेंगे। शिवम दुबे 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, रिंकू सिंह ने आकर खाता खोला है अपना, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और विकेट थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है, कि स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी मैचेस इस विकेट के ऊपर खेले जा चुके हैं। फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया उसे वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में, देखते हैं कि रन ले पाएंगे नहीं। और ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के बाद 156, 4 विकेट नुकसान पर।
इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 17 ओवर के बाद 156 में 4 भारत। शिवम दुबे फिर से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। टाइमिंग वैसा बैठा नहीं है शिवम दुबे का। प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं वो रन निकालने भी जरूरी है। अब कुछ अंतिम ओवर्स हैं, ये डेथ ओवर्स हैं। एक प्रकार से नेपाल खुश होगी, जैसे उन्होंने हल्की सी वापसी की है। ये 4 विकेट लिए हैं। जायसवाल भी अब जो सेट बैटर थे, जो शतक लगा चुके थे, वो वापस गए हैं। और अगर आप उनकी इनिंग्स को छोड़ दें तो बाकी जो बल्लेबाज है, थोड़ा सा संघर्ष नजर आया उनके द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बाकी कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हालांकि पहले विकेट के लिए 103 रन की भागीदारी जरूर हुई थी गायकवाड़ और जायसवाल के बीच में। उसके बाद तिलक वर्मा ने भी निराश किया, जितेश शर्मा ने भी निराश किया, वो बड़ा स्कोर नहीं खड़ा पड़ा है। अब शिवम दुबे पे उम्मीद है, जो 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिंकू सिंह उनका साथ दे रहे हैं, बचे हुए 3 गेंदों पर 3 ओवरों में, माफ कीजिएगा, कितने रन बनाते हैं दोनों बल्ले। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जैसा कि अजय ने कहा कि कमबैक किया है वहां पर नेपाल के गेंदबाजों ने, अंकुश लगाया है वहां पर रन गति को। और क्यों 13 रन की गति से रन बन रहे थे शुरू में, फिर 12 रन पर 11, 10, अब 9 पर आ गया है रन गति। तो भारत के लिए भी स्कोर अच्छा होगा अगर 180 और 200 के बीच में भारत अगर ये रन बना पाता है। और मुझे प्रवीण ऐसा भी लग रहा है कि शायद रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर आप भेज सकते थे। अब थोड़ा सा जो बैटिंग क्रम है उसमें जरूर वीवीएस लक्ष्मण भी वहां पे मौजूद हैं, स्वराज भोतुले भी हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इनको इतना टाइम मिला नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, वो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। रिंकू सिंह, उनके कारनामा हमने देखा था आईपीएल में खासकर, पर थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए, जब ज्यादा गेंदें हैं नहीं। अब इस बार उठा के खेला है सीधे बैट से, गेंद बहुत ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन यहां पे। Boundary 6 for India. बढ़िया स्ट्रोक वहां पर रिंकू सिंह के पल्ले से निकलता हुआ। जैसा कि बात कर रहे थे कि शायद बल्लेबाजी का क्रम उनका जो है वो वैसे भी नॉर्मल, आप देखा था कि हमने यूपी प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखा था, वो 4 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। हाँ, अगर जितेश शर्मा को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नीचे आएंगे, शिवम दुबे को ऊपर लाना चाहिए था, क्योंकि जो है, हालांकि वो जब चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं वो नंबर 3 या 4 पे बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कप्तान और मैनेजमेंट की सोच डिफरेंट रही होगी। जितेश शर्मा को भी मौका देना चाहते थे, और अब ये दोनों बल्लेबाज अब 23 रन बना रहे हैं। अच्छी चीज है कि आज बारिश की वजह से अभी तक खलल पड़ा नहीं है मुकाबले में। 100 रन की पारी अब जायसवाल द्वारा 100 रन 49 गेंदों में। एरी ने उनकी विकेट ली थी। रिंकू सिंह अभी भी आए हैं, प्रयास कर रहे हैं इस बार बड़ा शॉट का प्रयास, चूके ये लाइन अच्छी है, ये लाइन को बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक प्रोटेक्शन है, ऑफ साइड पे एक डीप पॉइंट है, कवर में फील्डर तैनात है, तो अब ये लाइन पे आप गेंदबाजी करेंगे ना, तो फिर बल्लेबाज थोड़ा प्रयास करता है कि ऑन साइड में खेले, अक्रॉस द लाइन। क्या किस प्रकार ओवर को फिनिश करेंगे? इस बार कट किया तो सीधा फील्डर के हाथ में। 163 पे 4। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी डूबी डूब, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। नो फ्रूट ऑन प्लेट। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
Change bowler. On the stadium end. Juve is going it over a runner ball, but would want to be a little faster in his strike rate. He's not got all of that, but I think he's going to be safe. Inside the 30-metre circle it lands. Just a little reproachful look at the face of his bat. Again, the captain who's been very good. Pordell, the off-spinners have been good today. Well, that has gone, but will it go all the way? Taken, airy, brilliant. Well, they're going to check it. I think this is 6. I think he's not that... Airy has just said 6. It's right in front of us. Unfortunately, the dugouts obscure the rope. And he was so blasé about it. Let's have a look. Oh, yeah. He tried to position himself right on the boundary, but he felt that he needed to jump just to take the catch. And in jumping, he's gone back and just placed his foot over the boundary rope. But Airy indicated straight away that it was 6. Six and a single. Well, that was tough on Airy. He's bowled well. He's still shaking his head down in front of us. Yeah, that's gone like a rocket, and I think that might have gone over the boundary rope for 6. Very, very low, fast strike. Well, this is power, because this is flat. I mean, that's gone around head high all the way to the boundary. God, it's hit hard. You talk about power hitting, well, that is it distilled, isn't it, into one shot. Looking to go leg side. No contact this time. Rinku Singh, the non-strikers, has really accelerated a couple of 6s, but Duvey just getting ready for the party as well. It could have gone out the ground twice, the last 2 balls, but it was a good comeback from Podell. He's 3 overs down now, 26 runs from him. 19 overs gone, 1 to go, 177 for 4, India. I think with the spinners it's a little bit different in that if you try and bowl full as a spinner, I think you take out the variances of the pitch. But if you can hit a good length, give it a real rip, the ball does tend to bite in this surface. Those last 2 deliveries from Pordell just bit and bounced, and Shubham Dubey struggled to get them away. Well, he didn't get them away at all. But the final over is going to be with seam to Rinku Singh. Kahara, yep, who's come just under 10 and over. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Over the top of the man, backward of square. Boundary ball for India. They're trying to stay away from the stumps of Rinku Singh, but in doing that it provides him with the width to be able to just flay at it outside off stump, and over it goes for 4.
So that's the start that the little left-hander would have wanted. Five more balls to wreak some more damage. So man there, he's not needed, it's gone over his head. What a shot this is. I mean, Bahara's just missed his Yorker length. But Singh is able to get down low, and he's got such a good bat and such wonderful timing. He just clips this straight over mid-wicket's head for 6. 10 in 2. Here he goes. He didn't get much of that, but he got enough. There's another 4. Boundary 4 for India. Oh, I don't know how he's actually got this here. I really don't. Bahara has found the Yorker this time, wide of off stump. There's just so much wrist work. It's unbelievable. I mean, how do they get that over there? That's an incredible shot. Putting pace on to the ball, even though it was going in a lick. He's a very wristy player, isn't he? Fine leg comes up. Backward point drops onto the boundary. Well, that's where the ball has gone a couple of times, isn't it? Well, he wants to hit it over the boundary. He's not even interested in 4s. He'll take him, but he doesn't want him. He's off strike, which is a little moral victory for Nepal. This is what boundary hitters can do. I mean, Rinku Singh's 29 off 13, but there was an over where he swung it and missed at about 4 balls. But when you have the ability to clear the fence, striking it at over 200. Dubé's innings has been a good one, measured. No! They were going to get away with a mistake. It was a wide, but goodness me. Rinku Singh was very anxious to get up the other end, perhaps a bit too anxious. Dubé looked around and there he was. Well, they've got a wide and a 1. A bye. 1 out the ground to bring up 200. Your wish is his command. Boundary 6 Into the for trees it India. goes. 200 up. 边界6分。 Over 10, the rate now. Plays this role so well, doesn't he? They just hold him back and hold him back. And then at moment critique, they send in Rinku Singh. And his job is to hit the ball out the ground. And why? He does it effectively. Well, it looked effortless. He does it so well. 1 ball to go. And we have reached that 200, the psychological 200 mark. 35 off 14. Another new ball, but just for 1 delivery. Fourth umpire, getting a bit of exercise today. They've got some good hitters in the Nepal team. It'll be interesting to see how they go, whether they chase hard. There is a man there. I think he's kept it in. That's great work. We'll take a couple. What a great innings that was from Rinku Singh. Good bit of fielding at the death there. Airy, the man in the deep, jumps, and before he touches the ground, he does. He gets the ball out of his hand,
That is brilliant in the deep from Airy. He's had a good game. He really has. He'll want some runs. He'll need some runs. This is going for 6. Athleticism. Amazing. So 202 for 4. Run rate of just over 10 and over. Nepal have had a good workout. And they'll have another examination when they come in to bat, of course. Dubé anchored that innings swiftly at the, towards the end. Rinku Singh was the enforcer. And, they cruised past the Maldives and Mongolia. It was easy. They were the big team. Now they are the underdogs, and they're going to have to see what they can do. Ladies and gentlemen, they'll be smiling, the Indian fans. I think India will be certainly satisfied with posting a total of that magnitude on their opening fixture here, a quarter-final fixture at the Asian Games. Jaswal absolutely magnificent at the top of the innings, 100 of just 49 deliveries. Gaikwad struggled, so did Tilak Verma. Sharma 5. Dubé played nicely in assisting Jaswal to his 100. And then Rinku Singh with some fireworks at the back end. What do you do when you're faced with that? Keep calm and carry on. A couple for Airy, who bowled well. Bahara, I thought, was a bit unlucky to have those figures. Ramashan, well, they all know him from the IPL. He bowled pretty well, and Padel put a shift in as well. So 200.
Deep Singh played a little bit of cricket, believe it or not, in Kent. Played for Kent, went across this year, played some county cricket. Well, they've just about finished the county championship in England. It's been pushed into September thanks to the 100 competition. Certainly different conditions in Kent, I imagine. Yeah, I think he was enjoyed there and some success. But a lovely bowler, has the ability to swing the ball back into the right-hander and go across them, but bowls it at a half-decent pace, not express. Oh, how about that? Welcome. Boundary early on for Nepal. Absolutely middle that one. I mentioned that Birdsall got a few starts. He looks a quality player. And as I mentioned, he might be disappointed that he hadn't gone on in the previous two games, but he would really fancy getting some here against India. Yeah, he's had in this tournament a strike rate of over 130, which is good stuff. It's a wide chord from the square leg umpire. Thinking about the ramp, I think, and they just got too big. Yeah, this is wide on height. Again, the wide is given if it's above the batter's head in a standing position. They're up with the rate so far. Sent back. No run there. Cutter bowled. Good shot. That's what we will see, is how quickly India adjusts to the surface that they're playing on immediately. Arshdeep in his very first over, bowling what is called a cutter, which is like a left arm spinner. Had a little nibble of that one. Perhaps thinking about just lifting it over past slip. The man at what would normally be called deep third is almost at a deep backward point rather than a traditional deep third. In action now. He's got 50 wickets. There's Arshdeep Singh. Experienced. Very much a bowler, not much to offer with the bat necessarily. Middle. Want to come. Side, another wide, and a hand goes up of apology. Yeah, I think he'll be a little bit disappointed with his start here. He is a quality bowler. We do have other seam. Avish Khan, right arm fast bowler. Ravi Bishnoi is one to look out for, the spinner. Just in front. Just in front, just for a moment. The captain, Wad, was in. हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल, the taste of India.
टैंके चल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Again, that deep backward point, and then a man he's in between fine leg and deep square leg. Very much behind square, the majority of the field. Oh, a bit of invention, a little scoop, and it'll be 4. Boundary foul for Nepal. Well, he's going to give it a go, Bertel, that's for sure. Taking a punt that Avish Khan's going to go full with the first delivery, and so happy to scoop. That's wonderfully played. I mean, it's well outside off stump. We know that he's got the ability. We saw that 35 not out against the Maldives. Came in and enforced his average. He's not far off 50. Much cooler today. Bit of breeze around now. I hope it stays like this for the afternoon game. It gets a bit warm for me. There'll be some support here for the afternoon game as well. Yep. Pakistan are making their bow. Looking to be inventive, isn't he, Bertel? Hong Kong have got through. That's who Pakistan will face, and there'll be a lot of support here for Hong Kong. We'll see how they go. Not this time. Swing and a miss. Yeah, really mixing up his pace here, Avish Khan. Slower ball the previous delivery. This one seam up. Just about missed the stumps. Sharp work around the corner from Sankishore. And the other man, along with Jiddish Sharma, the wicketkeeper, who's making his debut. I was just about to say, actually, the keeper. You wouldn't know it. He's busy. He's directing the field. Middle. So often the wicketkeepers are the energy in the team, and they get a great view of angles to assist captains in getting the field placing just perfect. She gets an edge and just about gets the boundary past slip. Boundary ball for Nepal. Just well. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
Left arm orthodox. Very impressive economy rate in domestic T20, under 5.5. Good contact, straight to the man. Yeah, there's lots of hugs, lots of applause, and what a lovely moment. Over the top of the field is inside the ring, and that fast outfield will do the rest. Boundary for Nepal. Bertel looking to go over a more extra cover, but with the help of a little bit of turn, it goes up and over point. But I like the fact that Nepal are having a go. They are saying, you know what, we're going to take you on. For one team, there is no tomorrow. Don't go home wondering. The extravagant sweep. He's definitely all guns blazing from the off. So the power play, but still just tweaking the field. And he's got enough of that. It should be safe. A fumble in the deep, but got there eventually. Pick it up by the handle, boys. Ravi Bishnoi at long off. It just plugs. When running past, he gives it a hoof. Bang. Well, kicked it. You'll say I kicked it to my teammate, who then misfielded it. I was probably a little surprised it was coming back to him. Even India can misfield. Little change of field as Kishore pushes long on back and brings mid-off up. Watchful to end the over. कल नहीं आए, क्या हुआ? सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था. Be honest, be more milk. Amul. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक. कैंट से पानी होता है 100% प्योर. They're interested. Nothing doing. A little bit of nip back in. Second over for Avish. For 9 in his first. That's a handsome shot, and it's gone all the way. Sheikh coming to the party as well. Boundary 6 for Nepal.
there's just too much room here, and with the pace that Avesh Khan has, well, to be fair, he's given himself a little bit of room to make that space on the offside. That's beautifully struck. First six of the innings. Nepalese fans are calling for a wide. Umpire's not listening to them. Maybe he just gave himself room outside that leg stump again. And then sometimes it can be deceiving. You feel as though it's wide because you can't get there, but it's just shaved your off stump. Slip out. Now there's been a touch on that, and they have their first. It's Sheikh who has to go. Keeper gets his first. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट क्यों तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना ये भी सही है ओके बाय ओके बाय और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है केंट से पानी होता है 100% प्योर केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी भारत को एक सफलता मिल चुकी है यहां पर और नेपाल के पहले विकेट खोया हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी वहां पर भारत की नेपाल की 23 रन बनाए थे उन्होंने मगर आवेश खान को मिलती हुई पहली सफलता कॉट बिहाइंड हुए वहां पर अच्छी गेंद अच्छा उछाल लेते हुए वहां पर और मगर वाइड का इशारा तो अंपायर का काफी कंधे से ऊपर चली गई थी गेंद और बुरतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर नए बल्लेबाज के रूप में माला आए हैं जिन्हों का अभी खाता खोलना है आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की अर्शदीप ने उनका साथ दिया मगर बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले थे कुछ बल्लेबाजों ने नेपाल की तरफ से एक अच्छी शुरुआत वहां पर हुई थी मगर इसी ओवर में सफलता मिलती हुई आवेश खान को भारत ने 202 रन बनाए थे अपने 20 ओवर निर्धारित 20 ओवर अंतिम ओवरों में काफी अच्छा प्रहार किया रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने और एक अच्छा टारगेट वहां पर दिया है नेपाल को बल्ले चेस करने के लिए 203 का लक्ष्य है वहां पर जो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है मगर क्रिकेट में कहना कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है नेपाल ने इस एशियन गेम्स के अंदर बुत्रेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर माला को अभी अपना खाता खोलना है अच्छा ओवर अब तक कहा जा सकता है आवेश खान का चौथा ओवर भारतीय इनिंग अच्छी गेंद बीट हुए बल्लेबाज ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति कुल योग 30 एक विकेट नुकसान पर पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया नो फ्रूट ऑन प्लेट देखो किधर है ये लो पार्ले कच्चा मैंगो बाइट कच्चे आम का कॉफी केंट से पानी होता है 100% प्योर केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी और एक देखते हैं गेंदबाजी में कोई अर्शदीप भी हैं गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है मगर कुछ बाउंड्री स्ट्रोक्स बल्लेबाजों ने लगाए थे बुर्तेल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं माला को अभी अपना खाता खोल रहे हैं
बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीच हुए वहां पर बल्लेबाज, अपील जरूर हुई हल्के में मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अभी भी कुल योग 30 रन, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था वहां पर अर्शदीप ने। जितेश शर्मा ने अपील की मगर बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है और स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। शुक्रिया प्रवीण। जी हाँ, एक विकेट खो दिया नेपाल ने, थोड़ा एंगल में बदलाव, अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा आप रूम मत दीजिए, जितना विकेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भूरतल। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल जानती है कि ये छोटा लक्ष्य नहीं है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। 200 से अधिक का जो टारगेट होता है, हमेशा वो एक दबाव रहता है। दबाव इस चीज का भी है कि आप शुरू में ज्यादा विकेट ना खोएं। ये पावर प्ले में कितने रन आते हैं, जब गेंद नहीं है, ठोस है, किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे, वो भी अहम रहेगा नेपाल के नजरिए से। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन। अच्छा संपर्क वहां पे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला वहां पर भूरतल ने और गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और गेंद को टॉप अच कर दिया था और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, काफी हवा में थी गेंद और काफी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है और वहां पे वॉलंटियर्स के द्वारा गेंद वापस आती हुई 6 रन अर्जित करते हुए भूरतल अपनी इस इनिंग में 36 पे जा पहुंचा स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं, जब भी उन्हें रूम मिलता है तो अच्छा प्रहार करते हैं वो। गेंद को एक बार अंपायर चेक करते हुए, क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर गिरी थी, और फिर एक बार फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लग चुके हैं अब तक इस नेपाल की इनिंग में। और एक ये भी है ना कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और जो टीम आज हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो वो भी एक अलग प्रेशर दोनों ही टीमों पर डालती है। नेपाल अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है, हमने इनको एशिया कप में देखा था और अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के विरुद्ध। मुझे एक मुकाबला याद है, अच्छे रन बनाए थे। तो धीरे धीरे टीम उभर के आ रही है। और एक और चीज भी है ना प्रवीण, अगर आप देखें, अब कई हम देशों को देखते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, अन्य जगह से अलग अलग नेशन से वो खिलाड़ी आते हैं, वो नेशनैलिटी लेते हैं, पर नेपाल के देखें यही सारे नेपाल के ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल छोटा सा एक कंट्री है, वहां पर जो क्रिकेट है बहुत अच्छी क्रिकेट वहां खेली जाती है। मुझे भी एक मौका मिला था जब 1982-83 में कॉलेज की टीम को जम्मू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम नेपाल खेलने गए थे, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था और वहाँ पर जब क्रिकेट तब अभी नई शुरू हुई थी तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे क्रिकेट के सेटअप को देख के। वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, अच्छे स्टेडियम है, नेपाल प्रीमियर लीग भी वहाँ पर होती है। तो धीरे धीरे क्रिकेट जो है नेपाल में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अच्छा नाम बना रहे हैं। अभी हाल में देख रहा है एशिया कप में क्वालिफाई किया, अब एशियन गेम्स में भी 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया हूँ। अच्छी वापसी अर्शदीप द्वारा, पर ये अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधे बैट से मिलेंगे 4 रन। 40 पे 1 नेपाल। जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 40 रन, 1 विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति, 8 रन की गति से रन बन रहे हैं। हालांकि 203 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। अभी अच्छी बल्लेबाजी की है, देखना है कि अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। और पावर प्ले का अंतिम ओवर का और कोशिश रहेगी। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बड़ी गुगली उनकी जो है वो काफी प्रचलित है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा गेंदबाजी करने में परेशानी जरूर होती है,
और एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। काफी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं भारत की तरफ से और एक अच्छा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। इस बार हवा में थी पर फील्डर को क्लियर करते हुए मिलेंगे 4 रन। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा गेंद को आगे डाला था रवि बिश्नोई ने और टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जो इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे वो किया। तेज गति गेंद थी, अब स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास। मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास भी किया पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई एक स्लिप तैनात है रवि बिश्नोई के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर, कोशिश है कि नेपाल के बल्लेबाजों की ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में टोरे जाए और उसके बाद अच्छी गेंद यहां पर ऑफ संपर्क पड़कर और बाहर निकलती हुई। रवि बिश्नोई जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाज को बीट किया जाता है। आप अंकुश लगाया वहां पर उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये फर्क है प्रवीण, अगर अभी सतह को देखे ना, थोड़ा दोहरा उछाल है। ये गेंद थोड़ी उठ के ज्यादा उछाल ली, थोड़ा फील्ड में परिवर्तन। अब जो डीप स्क्वेयर का फील्डर है उसको अंदर बुलाया गया है, जो मिड विकेट में फील्डर था जहां पे चौका गया था अब उस फील्डर को पीछे रखा गया है। थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बार डाइव किया शिवम दुबे, शॉर्ट फाइन पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, 1 रन और मिलेगा। पर मुझे लगता है सबसे अहम रहेगा यहाँ पे भूरतल का रोल, क्योंकि उनको वो शुरुआत मिल चुकी है। किसी बल्लेबाज को हमने जो देखा है, जब बड़े रन आप बनाते हैं, जैसे हमने जायसवाल को देखा, जब एक स्टार्ट मिल जाती है ना, आपकी आंखें जम जाती हैं, पर ये सतह अलग नजर आती है। जब आप नए आते हैं, जैसे जितेश आउट हो गए थे, तिलक वर्मा आउट हो गए थे भारतीय इनिंग्स में, तो वो इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सतह में नजर भी आ रहा है गेंदबाजों के लिए। काफी मैचेस खेले जा चुके हैं इन विकेट के ऊपर, क्योंकि एक ही स्टेडियम है वहां पर और काफी मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं। तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी में है वहां पर थोड़ा सा गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। रूम बनाकर उन्होंने कट किया वहां पर, मगर सीधी फील्डर के हाथ में थी। मौका बन सकता था, देखना है कि क्या वो पहले गिर गई गेंद। जायसवाल थे वहां पर, जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और भूरतल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। वो चाहेंगे कि इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। काफी ओहो, अगर ये प्रयास करते तो शायद आगे डाइव लगाते तो मौका बन सकता था। उन्होंने गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद थोड़ा सा उनसे पहले गिर गई और फिर गेंद को खेला ऑन साइड पर और 1 रन चले बल्लेबाजों ने। 46 रन 1 विकेट नुकसान पर नेपाल। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट राजभोग ड्राई फ्रूट्स मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क रियल आइसक्रीम। फिर भूरतल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अभी भी भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। क्या साई किशोर, अब ये भारत का रैंकिंग देखिए, पिछले कल जो खेल खत्म हुए थे तो भारत ने 60 मेडल जीत चुके थे, क्योंकि अब टारगेट इस बार था अब की बारी 100 के बार क्या भारत के कंटिजेंट ये 100 मेडल जीत के लाता है, क्योंकि काफी मेडल्स काफी प्रतियोगिता भी बाकी हैं और काफी अच्छी टीमें हमारे एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार 100 के पार जरूर जाएगा। जी, और काफी उम्मीदें ये पुरुष क्रिकेट टीम से भी है जो भाग ले रही हैं। जब भी वर्तमान मुकाबला ये चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, महिला टीम ने वो गोल्ड जीता था, तो काफी अपेक्षाएं ये मेंस टीम से भी है भारत को, किस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है। एक बड़ी चुनौती नेपाल के सामने इस मुकाबले में 203 रन की दरकार है और इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्योंकि लंबे कद के हैं और थोड़ा सा
गेंद को हवा भी देते हैं, तो यहाँ पे टर्न जरूर मिलेगी साई किशोर को। लेंथ भी अगर आप देखिए गेंद को आगे रख रहे हैं, वो टर्न के साथ वो उछाल भी नजर आती हुई, और उछाल इस सतह में है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास फिर चूके, और ये टेस्ट रहेगा अब दोनों बैटर्स के लिए, भूरतल और मल्ला के लिए, किस प्रकार स्पिनर्स को ये हैंडल करते हैं। रवि बिश्नोई का हमने ओवर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करे। थोड़ी सी जब गेंद पड़ी थी, थोड़ी सी मिट्टी निकली वहां पे, थोड़ी धूल निकली है। तो ये बल्लेबाजों के काफी मुश्किल होगा कि भारतीय स्पिनर्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीनों ही गेंद काफी टर्न हुई और बल्लेबाज को बीट करती हुई, और ये अच्छी बात नजर आती हुई भारतीय स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी करनी है, रवि बिश्नोई ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था, और देखिए गेंद काफी टर्न हो रहा है और उछाल भी ले रहा है, तो संभवतः यहाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे से खेला उसे ऑफ साइड पर, और 7 ओवर की समाप्ति कल कुल 48 रन 1 विकेट नुकसान पर। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 7 ओवर की खेल चुका है, और अच्छी गेंद, देखते हैं कि बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, अपील की जा रही है वहां पर, शायद अंपायर इशारा कर रहे हैं कि थाई पैड को लगकर गेंद गई है। स्प्लिक के फील्डर बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं अजय मेरे साथ देखना पहुंचना चाहूंगा कि वूड को क्या लग रहा है कि ये फील्ड बल्ले से बहुत करीब थे। जी हाँ बिल्कुल, और पिछला जो थाई पैड है उससे गेंद लगी और वो आवाज सुनाई दी थी, तभी वो जो प्रतिक्रिया है रवि बिश्नोई की, उनको लगा कि शायद बल्ला लगा है, वो आवाज, वो डिफ्लेक्शन। पर मल्ला का भी यही इशारा था, वो भी कह रहे थे कि यह मेरे थाई पैड से छूते हुई गेंद गई है। पर अच्छा मिशन कर रहे हैं वो, गुगली का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध। साई किशोर डीप में 1 रन और मिलेगा। वो जैसी स्पिनर्स आए ना, वो जो बाउंड्रीज हैं वो सूख सी गई हैं, वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे पिछले ओवरों में भी साई किशोर के। गेंद अब थोड़ा हरकत भी कर रहा है, थोड़ी सी अब गेंद ग्रिप भी कर रही है सतह को। जैसे अब भूरतल स्ट्राइक पे आए हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक डीप स्क्वायर, एक लॉन्ग ऑन, 3 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पे। 27 पे है भूरतल, 29 गेंदों का सामना किया है। 8वां ओवर प्रगति पर फिर से गेंद, वो हल्का सा टर्न और उछाल। 1-1 रन से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 5-6 रन भी आएंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट प्रवीण वो ऊपर जाते ही जाएगा, और वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। 50 रन पूरे हुए नेपाल के सिंगल के तहत, और बाउंड्री स्ट्रोक तो चाहिए हर ओवर पर अगर भारत का इस लक्ष्य का पीछा करना है नेपाल को। 203 रन बनाने हैं 20 ओवर, अगर मैच को जीतना है और आगे बढ़ना है। मगर भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, जब से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों पे अंकुश लगा है, और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, ये चांस जरूर लिया वहां पर। थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये भाग्य ने साथ दिया, जिस जगह पे खेलना चाहते, जिस क्षेत्र में खेलना चाहते वहां तो गेंद गई नहीं, और टॉप एज, और कहते हैं ना रन कैसे भी आए, ये फॉर्मेट ऐसे है कि रन आने जरूरी हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं, टॉप एज, एक स्लिप तैनात थी। अगर शॉर्ट थर्ड का फील्डर होता तो शायद हाथ में जाता, पर क्योंकि एक स्लिप तैनात थी, अब वो जगह पे कोई फील्डर था नहीं, तभी 4 रन और मिलते हुए यहाँ पे नेपाल को। अब शायद वो खिलाड़ी को स्लिप से निकाल के शॉर्ट थर्ड मैन पर रखा है रवि बिश्नोई, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी गुगलीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ड्राइव किया उसे ऑन साइड पर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूर इस ओवर में आया, मगर अभी भी रन गति जो है बहुत पीछे है, और काफी रन बनाने हैं अभी भी। 55 रन बने हैं 1 विकेट नुकसान पर। 203 रन का लक्ष्य का पीछे होती नेपाल की टीम। 8 ओवर की समाप्ति के आसपास हैं ये लोग, और भूरतल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है। 30 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं। माला जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं, और एक बार फिर गेंद को कट किया वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया और रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति 55, 1 विकेट नुकसान पर। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है।
छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और 55 रन बने हैं, 1 विकेट नुकसान पर। 8 ओवर खेले जा चुके हैं, 12 ओवर रन बनाने हैं, 178 और बहुत मुश्किल, माफ कीजिए 168 रन बनाने हैं। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, ऊपर गेंद थी और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर माला के बल्ले से निकलता है। या शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे माला यहाँ पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, विद द टर्न खेलना वो बड़ा शॉट, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज भी है इतनी बड़ी है नहीं। ये शानदार शॉट था, गेंद को आगे डाला था, स्लॉट में गेंद थी, क्योंकि दाहिने हाथ के बैटर के विरुद्ध थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो वो पिक करना आसान, वो एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार वो अब सिंगल मिलेगा आवेश फील्डर शॉट थर्ड पे। पर नेपाल जानती है कि कुछ अच्छे ओवर्स यहाँ पे चाहिए, कुछ बड़े ओवर्स आपको चाहिए। लक्ष्य 203 का पिछले अब 3 या 4 ओवर वो भारत के लिए पक्ष में रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे, इस बार वो अब स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा फंस से गए थे, क्रैम्प हो गए थे। अच्छी वापसी की साई किशोर ने वहां पर, पहली गेंद पे बाउंड्री स्ट्रोक जरूर आया था वहां पर, मगर 2 डॉट बॉल्स डालकर फिर प्रेशर दोबारा वहां पर नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर। काफी रन बनाने, 152 रन और बनाने हैं इसको मैच को जीतने के लिए। माला खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और गुरतर खेल रहे हैं, एक बार फिर उसे खेल दिया है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। तिलक राज वर्मा थे वहां पर और आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन नहीं कर गए, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर अभी भी वो शायद उस तरह से की बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था तिलक राज वर्मा ने। उतर आए स्ट्राइक पर, नेपाल 62, 1 विकेट नुकसान पर। ये 9वां ओवर चल रहा है, अच्छी वापसी की वहां पर साई किशोर ने इस ओवर में। और ये कैच वहां पर आवेश खान ने पकड़ा है और बहुत बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ भारत को। 62 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और साई किशोर को किस तरह से गेंदबाजी करी थी वहां पर, थोड़ा शॉर्ट गेंद जरूर थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे वहां पर, मगर शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आवेश खान मौजूद थे, बढ़िया डाइव लगा के उन्होंने कैच पकड़ा और ये भारत को मिलने वाली दूसरी सफलता। यहाँ तेज गेंदबाज हैं पर बहुत अच्छा एफर्ट वहां पे आवेश खान का। एक बड़ी विकेट मिलती हुई, एक सेट बैटर वापस जाता हुआ भूरतल के रूप में। साई किशोर अच्छी गेंदबाजी, आकार परिणाम जो सफलता उनको मिली है। भारतीय समर्थक, भारतीय फैंस काफी खुश। पॉडल आए हैं जो कप्तान है अब नेपाल के। इनके पास वो एक्सपीरियंस है, एक स्लिप थे ना, थोड़ा दबाव में इस समय नेपाल की टीम। अच्छा एफर्ट, बहुत बढ़िया एफर्ट, अच्छा ओवर 62 पे 2।
से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और एक और सफलता वहां मिली थी भारत को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है और देखना है कि वाशिंगटन सुंदर किस तरह की गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ड्राइव किया उसे ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर बल्लेबाज के ऐसा समय होगा 2 रन जरूर वहां पर अर्जित होंगे। माला के साथ अब कप्तान रोहित पुलेल साथ देने आए हैं उनका। ये 10वां ओवर चल रहा है, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब सारा दारोमदार माला के ऊपर आ गया, उनको तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और रन बनाने होंगे और पूरा साथ देना होगा कप्तान रोहित को, जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये शायद ऑफ स्पिनर के विरुद्ध माला जब स्ट्राइक पे इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब गेंद बाहर की तरफ टर्न कर रहा होगा। इस बार बड़ा शॉट और इस बार पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, यानी कि 6 रन और। अब इनमें वो क्षमता है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये अच्छा शॉट था क्योंकि स्पिन के विरुद्ध खेला हुआ शॉट था। देखिए कैसे अब वो लेंथ को परख लिया था, बैट फ्लो गजब का। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, शुरू से जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला उनको मालूम था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं माला। हालांकि ये इनिंग में 7 चौके और 4 छक्के आए हैं और 70 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन सिंह। आज भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेडल तालिका में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत की 400 मीटर रिले में फाइनल में प्रवेश किया, वुमेन्स की 800 मीटर में भी फाइनल में प्रवेश किया वहां पर। तो भारतीय एथलीट्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एशियन गेम्स में। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद का ही फाइनल लेग की तरफ फील्ड किया वहां पर। साइड किशोर ने 1 रन जरूर मिला, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। या कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। माला जानते हैं कि अब भूरतल आउट हो चुके हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पॉडल अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास। 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, फाइनल लेग सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट। एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय भी अब 4थे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डीप है तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्ड से। और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए और आगे ड्राइव करना चाहते थे। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वाशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? स्वीट। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। सॉल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The athletes area, isn't it? Bangladesh, I saw down there. I saw Cambodia there a little bit earlier because I saw
Birkus. Very recognizable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the origins of his surname? No, I didn't. I know you're curious. But again, Cambodia out of the competition, but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just have a look at first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? And they will all leave at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up on the medal table, I see, India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or there. China miles in front. They've had a very good games. Home games, of course. Next over. The Nepal's are pleased it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes. He didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. Yeah, and I think Podell will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Marla's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India won't mind that as the run rate. Misfield. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately, though, you can see the lengths that India are trying to find against Marla now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Wide ball. It's, like you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it, in any shape or form? Cover करके देख ले. Just a single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you? 4 overs. They're not looking to look at you. They just want to hit it out the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Malla will have to go. Well, this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally. But that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that mid-on initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support. So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground to as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Malla. 29 off 22, but he has to go. The new batter for Nepal, number 45.尼泊尔新籍球员45号 Dipendra. What great work that was. That's what T20 is all about.
It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but that's kind of where it originated. Airy to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6 against Mongolia? His first delivery went out the ground, and against the Maldives his first delivery went out the ground. That's an excellent stat. He tried his very best. Could have been out first ball. He did. Now with that 52, and most importantly 50 off 9 record against Mongolia. Poor old Mongolia got absolutely battered. Learnt a lot, but they got battered. Appeal, and he's given, and Nepal are starting to implode here. बेडरूम का कवर देखो, ढूंढो सर, माल कहीं नहीं मिला। भाभी जी, आप इतने यंग, इस जंग लगे बुड्ढे के साथ। क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया। पैसे। सॉरी बेबी। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Two new batters, that's exactly what India would have wanted. Shivam Dubey, the new man, into the attack, just medium pace. That's an edge, but it will go all the way. Wow. Boundary 6 for Nepal. Second ball went for 6. He comes out swinging, does Airy. He tried off his first ball, didn't middle it. He tries off his second, doesn't middle this, but there's enough on it to go over fine leg for 6. They're breathing. Nepal are breathing, but only just. No! A new strip for this match. It's taken spin, but it's not moved sideways like the beginning of this competition it was. There's a green covering. It looks as though they might go there for the afternoon game. That's been used already, so we might see a little bit more there. There's so many games. It's the women's tournament, of course, and the men's. It's not a big boundary either side, so you haven't got much wiggle room. Murray will just take the single. We haven't really seen a lot, have we, of the other Nepalese batters? We've seen Jar, the left-hander, who hasn't walked in yet. But the top order have done all the work for them in their opening 2 games. You don't really know what the tail has to offer.
for a quick single. Easy enough, and they'll take a buzzer as well, an overthrow. Bishnoi, the fielder here at cover, comes swooping in, but they were home. I don't think he needed to throw it. थोड़ा सा इधर करना सीधा पॉइंट Running the first one very quickly indeed. Still a ball to go, 10 off it this over already. Dubé not the most economical in T20 Internationals. He is going at around 10. Yeah, just a gentle medium pacer, no real speed about him. So you'll have to have some other skills, some cutters, off cutters, leg cutters, slower balls. And by this stage of the innings, out with the white ball, its swing is almost negligible. It's got a top edge. No. They're calling this leg buys. They're just calling on the trainer. He'll just have to do some. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Stadium end. The 12th over concluded. 88 runs for Nepal. 4 batters out. And we will look to wind up, I'm sure, again. In reverse. Big appeal from the keeper, nothing doing. Could have helped with a bit of support from the bowler, who obviously thought that was not going to hit the stumps. Going down leg. It's just over. Sakishori. Reverse again. Have to hurry through for the single. And they're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Sakishori, as the bowler, goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. I'm sure the coach will have something to say about that. And he goes behind his own wickets this time. And I think India they're okay with just letting singles go by. Ordinarily they would be a bit tighter in there at backward point, trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Going well. To run hard this time. Ooh, direct hit would have been interesting. What you say, HD? Hustling and bustling, but hustle and bustle is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, even a single sees the rate required go up because you need more than a run a ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over
The thing is, they need more than one now. They need a couple of boundaries and over. Still hold of that one. And it'll go all the way for 6. Yeah, great shot from Jora. Kishore will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's overpitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find it. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट For Airy, he's a tiny man as well, so length has to be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. I think do that again. Well, they're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. Boundary 6 for Nepal. How far does this top edge go? It is amazing. I mean, Shivam Dubé is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubé is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. Oh, I think it just about missed her. Yeah, throw it back. There you go. Hope she heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubé will be rattled. Still 3 balls of it to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot because Dubé this time bowls a slower ball and Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6. Talking about his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Yeah, quite comfortably. Can they keep this momentum? You'd almost be happy it went for a review just to interrupt that momentum. Conversations. 观众朋友们，如果落到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球。同时， Singh has come all the way from the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at keep extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end. The left armour. And that is going to be a race to save the... And they just about save the boundary. Good work in the deep again from India.
This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubé won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. He's going to run hard, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 sixes were. हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का। एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पे। और शानदार ओवर रहा था पिछला, जिसमें डेविड ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट में 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें, एरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए गया है। गेंद के साथ अच्छा कार्य किया। फील्ड में याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था, और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था, वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। पुल करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं, और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच डीप में, बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। कामी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए। हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज़्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक पे, अगर मेडल्स की बात करें, चौथे मैदान पे। और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि ये क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारत की कोशिश, अच्छी गेंद वहां पर थी, गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और मिशन कर रहे हैं वहां पर, तो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अभी भी नेपाल काफी दूर है, 70 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है, मगर असंभव नहीं है। अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में।
जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर मिड विकेट पर फील्ड किया है, एक रन जरूर मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128, 5 विकेट नुकसान पर। क्यों वो तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नाउ फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए हैं, वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम के उनके एक और उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर आया। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल। ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। ये प्रयास कर रही है नेपाल। और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में। इस बार वो कट करने का प्रयास चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है ये अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है, जहाँ की हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1-2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और अच्छी बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमक से बना होगा। भारतीय गेंदबाजों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, क्योंकि 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है। और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे, वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था, एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है। एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है, पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, अब नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते हैं खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भतुले, इस बार सीधे बैट से फील्डर डीप में तैनात और सीधा हाथ में, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहां पे। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नाउ फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने को, और गेंद सीधी चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। छठा विकेट गिरा वहां पर नेपाल का
कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंद थी, वहां पर बाहरी किनारे गई, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक रन जरूर मिला बल्लेबाजों को और अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर। इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेंद में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी। आज एक मेडल और ऐड हुआ है। और आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है। 203 का लक्ष्य पीछे करते काम ही 1 रन बनाकर खेले जी के झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने अभी खाता खोला था। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक। देखते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 伊波尔边界6分。 कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी हमारे नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर लेकर और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया। वहां पर बल्लेबाज गेंदबाजों को सही लाइन और पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना, 19 रन आए हैं और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार उठा के खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और वो बाउंड्रीज आती रहेंगी ना, तो ये नहीं कि अब नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे। अगर 18 रन के औसत से रन बनाए हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि पहली डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को। शर्मा विकेट कीपर, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे कि शायद देख रहे थे वाइड का इशारा होना चाहिए था। गेंद ऊंचाई काफी थी, मगर फायर करने में गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ। 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है और अच्छा जीत लिया भारत ने मैच, माफ कीजिएगा। इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीतकर आगे बढ़ा। यह हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। और थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, शायद ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में। तो अभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती हैं तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित। थोड़ा फील्ड बदलाव, जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ तो डीप थर्ड पे था। ये बैट बाउंस विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद उनके हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी निकली वहां से विकेट भी आगे से और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन अतिरिक्त वहां पर मिलते हुए और एक बार फिर थोड़ा सा लक्ष्य कम होता हुआ
41 रन बनाने हैं बची हुई 19 गेंदों पर। 156, 6 विकेट नुकसान पर 12 एक्स्ट्रास आज भारत ने दिए हैं। आवेश बनाकर गेंद को उछाल दिया है। देखते हैं कि वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच वहां पर साई किशोर के द्वारा, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर और भारत को मिलनी वही 7वीं सफलता। ओवर की समाप्ति 156, 7 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जा। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अंतिम गेंद पर सफलता मिलती हुई वहां पर आवेश खान को 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और भारत एक बार फिर वापसी करता है। अर्शदीप अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए और फिर शॉट में गेंद थी, उछाल खेला है वहां पर, फिर सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को भी और एक 8वां झटका लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे ख्वाब। और 8 विकेट गिर चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है और अर्शदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता थी वहां। पिछले ओवर में भी उन्हें 1 विकेट मिला था। जायसवाल को दूसरा कैच, अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया, उसे ऑफसाइड पर रन लिख चुका लिया बल्लेबाजों ने और 157, 8 विकेट नुकसान। जी हाँ बिल्कुल, ये भारतीय खेमा वीवीएस लक्ष्मण, सराज भोतुले जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ। इनके जो इनपुट्स हैं काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे ये युवा खिलाड़ियों के लिए। थोड़ी समस्या जो नेपाल की है क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गंवा दिए, 18वां ओवर चल रहा है अभी। संदीप लामिच्छने आए हैं नए बल्लेबाज, केसी वहां पे मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार वो कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका हो सकता है रनआउट का। जी हाँ, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट हिट होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ बहुत दूर रह गए थे, बहुत दूर। और थोड़ा सा अर्शदीप को भी विकेट के पीछे, हालांकि कई बार आप फॉलो थ्रू में होते इतना आसान रहता नहीं, थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, अर्शदीप के पास, मगर रनआउट का मौका बना था, वो गवा दिया। और ये अच्छी गेंद थी वहां पर, यॉर्कर लेंथ पे इसको ड्राइव किया, उसे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। 203 का लक्ष्य का पीछा करते 158, 18वां ओवर चल रहा है।
भारतीय खेमा काफी खुश है और नेपाल के खेमे में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो लोग इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारत की टीम फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। पोडियम फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच भी जीतकर आगे बढ़ना होगा और भारत के लिए काफी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी क्रिकेट मैन में भी। अच्छी गेंद वहां पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज बीट हुए, डॉट बॉल आती हुई, तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि अब बहुत मुश्किल नजर आता हुआ है नेपाल के लिए। 158, 8 विकेट नुकसान पर 45 रन चाहिए 13 गेंद पर। हमने आईपीएल में देखा था कि आईपीएल में काफी बड़ा स्कोर लास्ट के अंतिम 3-4 ओवरों में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, जिन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं? एक बार फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिसफील्ड एक और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 162, 8 विकेट नुकसान पर। बाउंड्री फॉर नेपाल है लटके। गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। The penultimate over, bowled by the front line seamer. Just coming as you say, brought back. Perhaps trying to just clean this up now. The teams tend to have their number one bowler tends to bowl the penultimate over in a run chase, because they always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for that one. Kishore just watches that one go over the top. They're still wagging the tail. This is another clean strike from a back of a length delivery. I tell you, I'd be very interested to know, as far as the boundary count goes, if Nepal have hit more sixes than India. It must be close. Well, I think that's their 13th, isn't it? And edge and 4. Yeah, I think it was 12 from India. Well, here we go. Here we go now, because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do of these last 3 deliveries to put that 5th bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Keeper stopped that one. Yeah. Don't think he'd be keeping in the next match if he had let them gone through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well, obviously this odds stacked against them, but just bear in mind they're going 9.2 and over themselves. That's against India. That's not a bad effort. Great effort. Closer than many thought. The Indians have gone a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. There's a man down there. Will just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. He was expensive in the first 3. He's gone for a few here in this 4th over. Which can not been plain sailing for him. Has a couple of wickets.
Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air, should be taken, and is. He's had some catches to take down on that long on boundary. That. बैग किसका है? मेरा नो फ्रूट ऑन प्लेट. नहीं है. अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है. आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है. केंट से पानी होता है 100% प्योर. केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है. केंट देता है सबसे शुद्ध पानी. It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. We've got Avinash Bohara. One more over to go. 30 needed. So the ball gets thrown to Shivam Dubé, who has all of 30 to defend. So that's the reason why they bowl the number one bowler, that penultimate over. Just eases the pressure a little bit on the fifth bowler. Everything's got to go out the ground. Swing and a miss, and India can start to breathe easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Oh, good fielding of his own bowling. Dubé has been taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming back well in this last one. Another miss. This is much better. This innings that started with a bang is ending with a bit of a whimper. Well, where were these Yorkers? Mind you, you are bowling to the last pair. You know it's in the bag. You relax a little bit, don't you? And that helps. Still trying to find the boundary. One more ball to go. Nepal will depart this competition, but not without a few records and a bit of respect to their name.